Hello and welcome back to Grey Beyond Narratives. Today we will be discussing the Israel Palestine crisis and its impact on geopolitical alliances, corporate finance. The conflict between Israel and Palestine has been ongoing for decades, and the recent escalation of violence has brought the issue back into the global spotlight. In this live session, we will explore the latest news on the crisis and provide a platform for an informed conversation on the impact of the Israel Palestine crisis. We will begin by providing a brief overview of the current event surrounding the whole thing. We will then delve into the role of geopolitical alliances in the region and globally, and also discuss the impact on the alliances. We will highlight the countries that have taken a stance on the issue and the reason behind their stance. Also, discuss the implication of these alliances on the future of the region. Today, we have speakers with us, Furqan Ahmed, Shaji, Khalid Khan, Dr. Zaidi, and Said Siddiqui. And Shaji, you can carry it on from here. Thank you very much. So today is a bit different. आज थोड़ा सा different है. We thought we should look at two aspects of things. एक तो governments किस तरीके से जा रही हैं इस चीज़ के लिए. Why certain governments changed their stance in the last 3 weeks. इसके अंदर कुछ countries neutral थी, कुछ countries Palestine का और Israel का balance करके चल रही थी. Or now the stances are completely different. As we know कि western countries तो जो हैं, जहाँ तक government की बात है, United States, United Kingdom, Germany, mainly EU की जो countries हैं, they're all like taking Israel's side, while there have been other countries who have outright rightly kind of held a neutral stance till now, जिसके अंदर हमें इनडायरेक्टली हल्का सा टिल्ट भी नज़र आया कुछ कंट्रीज़ का पैलेस्टाइन की तरफ. एक तो उसके अंदर रशिया आता है, चाइना आता है. The kind of indirect actions, for example, China took by sending their their ships into the region. 3 ships उन्होंने भेजे as soon as United States showed their presence in that region. फिर उसके बाद जो साउथ अमेरिकन और कंट्रीज हैं जिस तरह बोलिविया, चिली, a few others, और आज ब्राज़ील का भी जो लीडर था, लीडरशिप है, उसने भी इसके ऊपर काफ़ी आउटराइटली इसराइल को क्विट किया है और कंडेम किया है. और मोस्ट लाइकली अर्जेंटीना और ब्राज़ील are two of the countries जिनका नज़र आ रहा है कि they're going to go the same way as Chile and Bolivia, most likely. Diplomatic ties and whatnot, they've cut them off. Libya is another country, from the only Muslim country which basically kick-started that. They were the first ones to basically refuse to have any trade or sell any oil and have any diplomatic relations with Israel, and then the South American countries, a few of them followed. उसके अलावा जो अगला पार्ट होगा वो boycotts of products in by various people who are pro-Palestine, and we're going to uh, dig into that. उस तरह की भी काफ़ी practices हुई हैं, few incidents have come out, and we're going to talk about that. फिर ये खालिद भाई जो हैं, his organization, like he's associated to Al Khidmat, which is a charitable organization. They've been doing a lot of charitable work in Palestine or in के doctors और कई तरह के लोग हैं. He's going to talk a bit about that in the later part. So it's a mixed bag, but it's all connected. We're going to look into freedom of speech. We're going to see how different governments are curtailing narratives, how different communities are being attacked. Does condemnation and diplomatic relation ending or threats work? और फिर आज हिजबुल्लाह का जो लीडर है नसरुल्लाह, he's made some very, that's the highlight of today.
So that's another subject we're going to go with. So we're going to begin by the countries who are on जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जाते हैं डॉक्टर जैदी, you begin how you viewing this, and then we'll go to Khalid bhai, and then anyone who wants to pitch in from there. जी शाहजी, आपने काफी अच्छा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है शुरू में, और काफी बातें बताई हैं, और इसमें कुछ एडिशंस वगैरह हम कर सकते हैं डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए। पहले भी ये बात होती रही है आपके प्रोग्राम में, और वैसे भी मैं अपने रॉयल टीवी चैनल के तहत तो ये बातें काफी अर्से से कर ही रहा हूँ कि देखिए, हमें यहाँ पर दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है, और ये अलायंस जिसकी आज बात हो रही है, इसके आसार बहुत पहले से नमूदार हो रहे थे। अभी आप देखिए, यूएन में रशिया ने क्लियर एंड कट ये बयान दिया, ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था जो यूएन में दिया गया, 1-2 दिन पहले दिया गया, कि इज़राइल डज़न्ट हैव द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, इट्स एन ऑक्यूपायर। ठीक है ना? ये बहुत एक काफी बोल्ड स्टेटमेंट था रशिया की तरफ से, जो यूएन में दिया गया कि इजराइल को अपने डिफेंड का हक हासिल नहीं है, इजराइल काबिज है इन जगहों पर, तो वो कैसे अपना डिफेंड का हक दे सकता है। तो ये चीज इसमें समझ आती है कि यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि रशिया का जो बोल्ड, तकरीबन आप देखिए कि स्टांस बहुत माइल्ड से शुरू होकर सीवियर की तरफ जा रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, और साथ साथ जो ब्रिक्स के मुमालिक आप जैसे कह रहे हैं, उनका भी अब एक मौकिफ सामने आ रहा है। एंटी वेस्ट हमेशा समझा जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों ब्रिक्स की करेंसी के मुतालिक भी जब बातें की जा रही थी, तो उसमें ये बात समझ आ रही थी हमें कि ये कोई एंटी वेस्ट स्टांस लेगा, लेकिन चूंकि इतने ज्यादा इख्तलाफात है एक करेंसी के मामले पर, कि नहीं हो सकता हिंदुस्तान को छोड़कर। हिंदुस्तान की बात अलग है, हिंदुस्तान का जो रवैया है वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ हमें नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इस टाइम ये बात मैंने पहले भी कही थी कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने 90s में अपनी एक किताब लिखी थी और इंटरव्यूज़ भी दिए थे। सैमुअल पी हंटिंगटन को मैंने बहुत पढ़ा, देखा, उसके इंटरव्यूज़ देखे उस ज़माने में, व बाद में किताब भी पढ़ी। तो क्लैश ऑफ सिविलाइज़ेशंस में जो उसने बातें लिखी थी, वो करीबन आज हमें होती हुई नज़र आ रही। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको कह दूं कि अमूमी तौर पर, खास तौर पर जो डॉक्टर इसरार स्कूल ऑफ थॉट है, उसकी तरफ से ये बात कही जाती थी कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने ये नैरेटिव पेश किया था कि वेस्ट जो है इस्लाम के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ये बात सही है, लेकिन उसमें एक चीज उन्होंने एडिशन नहीं की, जिसमें उसने ये कहा था कि बेसिकली सैमुअल पी हंटिंगटन ने ये कहा था, वेस्ट एंड द रेस्ट। ठीक है ना? वेस्ट का मुकाबला दीगर सिविलाइजेशंस के साथ होगा। ये नहीं कि सिर्फ उसमें इस्लाम ही है, उसने 7 जो मेजर सिविलाइजेशंस थी उनका जिक्र किया था दुनिया में, कि ये मेजर सिविलाइजेशंस है और इनके दरमियान क्लैश का वो है। उसमें उसने जापानीज और हिंदू सिविलाइजेशन के मुतालिक ये कहा था कि ये पेंडलिंग पोजीशन में होंगी, इनका पता नहीं होगा कि ये किस तरफ जाएगी। और वही चीज हमें नजर आ रही है। उसी को बुनियाद बनाकर 2015-16 में एनालिसिस मैंने दिया लोगों को कि देखिए, ये एक हमें एक शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है जो सीरिया में हो रहा है। वो हमें नजर आएगा कि ये आगे जाकर एक बड़े जो है एक कोलिजन की के जो है वो शायद सूरत इख्तियार कर लेगा, और अब शायद वो उसके आसार हमें नजर आ रहे हैं। टू अर्ली टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन राइट नाउ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें वो अलायंस, बड़ा अलायंस होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो आप प्रोडक्ट्स की बायकॉट की बात कर रहे हैं, और जो वेस्ट जिस तरीके से खुल के सामने आ रहा है इसराइल के लिए, ये भी एक बात है। लेट्स सी कि वेस्ट कितना आगे जा सकता है, क्या कर सकता है इस वक्त इसराइल के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक चीज ये भी है कि वेस्ट की, जैसे कि हम प्रोग्राम के शुरू से भी पहले थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे, हेल्थ सेक्टर में वो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक हेल्थ सेक्टर से है, इसलिए मुझे ये चीजें नजर आ रही हैं कि एक इकोनॉमिक जो क्रंच है ना, वो वेस्ट के ऊपर है, और इसके जो वो रिसोर्सेज पहले हुआ करते थे अब वैसे नहीं है। तो किस हद तक जा सकता है, ये भी एक सवालिया निशान होगा आइंदा आने वाले दिनों में। क्या आया सिर्फ जबानी कलामी ही बात करता रहेगा,
या मजीद भी कोई उसको दे सकेगा, ये एक मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में हमें वाज़ेह सूरत हाल होती हुई नज़र आएगी। अभी तक सिर्फ़ ये जो इस तरह की चीज़ें करना ये ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकती, क्योंकि एक वेस्ट में एक बहुत अच्छी बात ये है कि यहाँ की कोर्ट्स जो है ना वो फ्री हैं, फेयर एंड फ्री हैं। तो अगर ये करना भी चाहेंगे तो उनको शायद कोर्ट्स रिजेक्ट कर दें। जो लोग इस तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो है वो पूरी तरीके से फ़ॉलो किया जाता है वेस्ट में। तो ये इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। जी। जी, thank you very much. So, Khalid Khan साहब, you basically heard what Dr. Zaidi said. आप अपने initial thoughts बताएं, then we can like open the panel. खालिद खान साहब, आप म्यूट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये डॉक्टर जैदी साहब एक नाम लेना भूल गए जो पार्टाक पे अक्सर लेते थे कि इमाम मेहदी साहब आएंगे, तो ये इन्होंने आज इमाम मेहदी का नाम नहीं लिया। देखें, मेरे सोचने का अंदाज़ा आपको पता ही है, थोड़ा डिफरेंट है, या मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। अगर मगरब सारा इकट्ठा है तो ये कोई अनहोनी बात नहीं, ये हमेशा से इकट्ठा रहा है। अल कुफ्र मिल्लतन वाहिद, ये तो कुरान में कहा गया है कि ये सारा कुफर जो है मिल्लत वाहिदा है। और रह गई बात ये जो है ना, ये फ्रीडम जो है यहाँ पे ऑफ एक्सप्रेशन, वो बराए नाम है। आज मैं टीवी देख रहा था, जेनोवा में, इटली में, एक बंगाली को घर से पकड़ के ले गए कि वो जी ये मुमकिन दहशतगर्द हो सकता है, क्योंकि उसके घर से वो बच्चे की बनाई हुई पोर्ट्रेट मिली है जिसमें और 2 मफरल मिले हैं फ़लस्तीन के। यानी कि फेसबुक की पोस्टों की बुनियाद पे ये पकड़ना शुरू हो गया है। कुछ की क्या करना है इधर, जो पाकिस्तानी है या बंगाली है, उनको अपने रोटी रोज़ी से फुर्सत नहीं है। तो ये जो ना फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बस ढकोसले हैं इनके कि जी अगर कुछ नहीं मिलेगा ना तो फिर ये कहेंगे जी आप वो हेट स्पीच। अब हेट स्पीच की कोई तारीफ मुतय्यन नहीं है। हम अगर रिएक्शन दें किसी चीज के ऊपर तो वो हेट स्पीच के ज़मरे में आ जाता है। ये हमारे कुरान को जलाएं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तौहीन करें, तो वो जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके, जो हर रोज, चूंकि ये ताकतवर हैं, चूंकि दुनिया पे इन्हीं का तहजीब गालिब है, लिहाजा इनके खिलाफ कोई कुछ किया नहीं जा सकता। और जहाँ तक ये आपने बात की ये प्रोडक्ट्स के बाइकाट की, देखें ये आपके अपने अंदर की आवाज़ होती है। शाह जी, मेरी अगर आपके साथ, हमें पता है हमारा जो कल्चर है, किसी के साथ लड़ाई हो जाए हम उसकी दुकान के आगे से नहीं गुजरते। अब हमारे उसके दुकान से आगे गुजरने से उसकी कोई बिजनेस को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जज्बात की अक्कासी तो होती है कि नहीं। जो मुसलमान है इस वक्त, जो मैं, मुझसे तो वीडियो वो फुटेज देखी नहीं जाती, वो जो जो फलस्तीन से आती हैं। तो ये हमारे जज्बात का इजहार है कि यार हम जो कुछ कर सकते हैं, हम कमजोर हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो इतना हो सके। अब मैकडोनल्ड जो है वो जरूरी तो नहीं है, तो फर्ज तो नहीं है, जो मैं छोड़ सकता हूँ छोड़ू। यानी कि एक मेरी पार्टिसिपेशन है ना किसी लेवल पर, बाकी इससे कोई इतना बहुत तो ज्यादा गहरा असर पड़ेगा नहीं। खालिद खान साहब, ये जो फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स की बात है, मैकडोनल्ड्स को बॉयकॉट करना तो एक चीज़ हो गई ना, देन देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट। अब यूके में एक वाकया हो रहा है, मैनचेस्टर में भी किसी ने किया, बर्मिंघम में भी किसी ने किया, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सो देयर आर पीपल नाउ, व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो मैकडोनल्ड्स के अंदर डिब्बे लेके जा रहे हैं और उनके अंदर चूहे हैं, और उन चूहों को उन्होंने पैलेस्टाइन के फ्लैग के कलर में हाँ, पेंट मैंने किया देखा है। ये वीडियो, देखिए मैंने। हाँ, वो एंटर करते हैं और वो वहाँ पे फेंकते हैं। एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। सिड, कैन यू प्ले दैट वीडियो? खैर ये तो एक हर, इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है, मैंने इस चीज़ के, हम ऑलरेडी जो है वो कमज़ोर हैं, ठीक है। हम वेस्ट में हैं, हमारी पोजीशन बड़ी नाजुक है, हमें पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए, सिंबॉलिक। जी, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
ये मुहिम मुझे वीडियो इससे हम देखते जो हैं है आप? इनको मजीद अपने ऊपर हाथ डालने का मौका देंगे, बातें करने का मौका देंगे। तो सेंसिबली जो है वो प्ले करना चाहिए, अपने जज्बात का इजहार करें, गलत को गलत कहें, लेकिन लिमिट्स के अंदर रहते हुए। अच्छा जी, आपने ये प्ले करनी है, ये हसन नसरुल्लाह साहब की। नहीं आप ما बोलें, अभी वो रेडी कर रहा كثيرا है। جدا नसरुल्लाह खान قد ने يبدو चूहे नहीं छोड़े, للبعض मुझे यकीन है इस बात का। الذي يتوقع أو तो يطالب أن ना वो कभी मैकडॉनल्ड्स गया होगा नसरुल्लाह। मेरा नहीं ख्याल कि नसरुल्लाह हसन कभी मैकडॉनल्ड्स गया होगा, ना उसने कभी चूहे देखिए, प्रोडक्ट्स के बाइकाट का कुछ ना कुछ असर तो पड़ता है, आपको पता है बिजनेस में सबसे ज्यादा जो है वो। लेकिन अभी तो है पाकिस्तान में, तो है लोगों के पास अल्टरनेटिव है, लोगों ने लिस्टें शाया की हैं कि आप ये नहीं तो ये ले सकते हैं। यार ये इसको प्ले कर लें, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, जी कंसंट्रेट ही आप कर। बोलें। ये मुझे नहीं पता कि उस गलती से टेक्निकल इशू हुआ है। आप कंटिन्यू करें। हाँ। बाकी मुसलमानों की निस्बत लेफ्ट के लोगों ने ज्यादा गैरत का मुजाहरा किया है इस दफा। कि देखिए बोलीविया किधर है, क्यूबा किधर है, ब्राजील किधर है, अर्जेंटाइन किधर है, शुमाली कोरिया किधर है, चाइना, उन्होंने जो है मुसलमान मुल्कों से ज्यादा बेहतर जो है रिएक्शन दिया है, ज्यादा गैरत का मुजाहरा किया है। और हम अभी तक अगर मगर ये आज मैंने बहरीन का पढ़ा था कि उसने सफारती तल्लुक खत्म किए हैं, जॉर्डन ने किया है, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक रवैया सऊदी अरब का है। बल्कि आज हमने इसके ऊपर लिखा भी था कि ये जो है ना अंडर कवर से होनी है, ये जो सऊदियन है इनका, एक तो वो वहां पे वो डांस और वो कर रहे हैं, वो शकीरा के प्रोग्राम करवा रहे हैं, ठीक है, और जो है वो अमेरिका को कॉरिडोर दे रहे हैं, यानी कि वो किसी किस्म की हेल्प नहीं कर रहे। हाँ, ब्राय नाम इन्होंने एक एक्टिविटी किया है जी, आप फलस्तीनी बच्चों के लिए चंदा जमा कर सकते हैं। वो भाई चंदे तो जमा करते हैं जो आम पब्लिक होती है, हुकूमत का काम होता है एक्शन लेना। ईरान जैसा भी है उसका रोल पॉजिटिव है, वो बेहतर रोल अदा कर रहा है, जबकि सऊदी अरब, दुबई, ये राजवाड़े जो हैं इनका रवैया पहले भी हमेशा से शर्मनाक रहा है और आज भी शर्मनाक है। पाकिस्तान का किरदार बेहतर है, ज़ाहिर है हम दूर बैठे हुए हैं, हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बात भी की है, आर्मी चीफ का भी स्टेटमेंट आया है, और यूएनओ में जो है वो अकरम, उसने राजा अकरम, उसने भी जो है बड़ी अच्छी बात की है। हम तो यही कर सकते हैं, लेकिन ये जो करीब कंट्रीज हैं इनको जो है वो ज्यादा बेहतर स्टैंड लेना चाहिए था। जैसे हो गया ये आपका लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट, इजिप्ट बड़ा की रोल अदा कर सकता है, लेकिन वहां पे उन्होंने पहले अपना पपेट जो है वो जनरल सीसी बिठाया हुआ है। और क्या था पॉइंट कोई? हाँ, एक चीज ध्यान में रखें, एक और चीज, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये बड़ा की पिवटल रोल अदा करती है जंग के दौरान ना, मोराल डाउन करना या मोराल का सत्यानाश करना। फलस्तीन में, गजा में जो है लड़ने वालों को बड़ी कामयाबियां मिली हैं, उनकी फुटेज उन्होंने भेजी है, सबूत मौजूद हैं। जो ये इसराइल है जो सोच रहा था ना कि उसके लिए नुकसानात उसकी तवक्को से काफी ज्यादा हुए हैं, क्योंकि दूसरे तो पहले ही मरे हुए हैं ना, उनके लिए तो कोई जिंदगी मौत जो है एक ही बराबर है ना। तो उनके तवक्कुआत से ज्यादा तैयारी की हुई थी उन लोगों ने, मास वगैरह ने, और जो फुटेज आई हुई है वो हैरान कौन है, जिस तरह के तरीके से उन्होंने उनके टैंक तबाह किए हैं। बल्कि इस इटालियन टीवी के ऊपर भी वो दिखाई गई है कि वो किस तरह सुरंग से निकलता है और हाथ से जाके उसके ऊपर रख आता है बम, पहले वो बम फटता है उसके बाद रॉकेट से उड़ा देता है। उनका कितने अरब रुपए का एक टैंक है जिसके ऊपर बड़ा मान था, उसको उड़ा के रख दिया, 6 टैंक तबाह किए उन्होंने। बहरहाल देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसका रवैया तो हमेशा की तरह शर्मनाक है, डबल स्टैंडर्ड है इन लोगों के। जंगबंदी जो है वो उसका अभी तक नहीं कह रहे इसको इसराइल को, यानी कि वो सिविलियन आबादी को मुसलसल निशाना बना रहा है, मुसलसल। आज भी अस्पताल के जो है वो इर्द गिर्द जो बम्बारमेंट की है, और कुछ वीडियो ऐसी हैं कि जो देखी ही नहीं जाती, इतनी ज्यादा जो है वो दर्दनाक। हाँ जी शाह जी, बस यही था कुछ, कोई अगर पॉइंट आया तो जी फिर तो दरमियान में बोल लेंगे। जी खालिद साहब, जैन साहब, लाइक आपने एक्सप्लेन तो किया, और एंडिंग जो आपने की है कि व्हाट द करंट सिचुएशन इज राइट नाउ,
जिसमें सिविलियन लाइव्स का लॉस हो रहा है, हॉस्पिटल्स पे अटैक हो रहा है, और ग्राउंड इन्वेजन भी करंटली चल रही है। साइलेंस, क्योंकि वी वुड आल्सो टच द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। साइलेंस जो अभी है सऊदी अरेबिया, जो यूएई स्टेट्स है, इनकी ये क्यों है, और व्हाई व्हाई दे आर साइलेंट एंड दे हाँ, ये इंतजार आर कर रहे प्रोबब्ली। हैं कि हमास को खत्म कर दें, अखवानियों को मार दें। ये पता है ये प्रो सीसी हैं, ये इन चीजों को अपनी बादशाहत के लिए खतरा समझते हैं कि ये हवाल चल पड़ी तो हमारी बादशाहत भी रगड़ी जाएगी। इनको सिर्फ अपना इक़्तिदार अजीज है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं सोचते। ये तो इंतजार कर रहे हैं कि मैक्सिमम डैमेज हो जाए इनका। कोई इंसानी हमदर्दी नहीं। अगर उनके अंदर रत्ती भर हया होती, शर्म होती, तो अपने मुल्क में जिस तरह वो फेस्टिवल मना रहे हैं उसको पोस्टपोन कर देते, उसको कैंसिल कर देते, लेकिन कोई नहीं है। सऊदी अरब की सोच स्वाय अपनी बादशाहत को मजबूत करने के अलावा कुछ भी नहीं। कोई उम्मत मुसलमान कुछ भी नहीं उनके लिए। ये उनका किरदार बदतरीन किरदार हमने पहले भी देखा है और अब भी देख रहे हैं। एक होता है वेस्टर्नाइज होना, एक होता है वेस्टॉक्सिकेट होना। वो अपने मुआशरे को वेस्टॉक्सिकेट कर रहे हैं इस वक्त। जो इस किस्म की बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं यार, ये कौन? वो कहता है कौवा चला हंस की चाल के अपनी भी भूल गया। वो हाल है इस वक्त उनका। जी जैद साहब, आपका क्या ओपिनियन है जो करंट स्पेशली मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं आई उनका जस्ट जो वांट टू ऐड वन पॉइंट जी है। जी 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 प्लीज प्लीज खालिद एक साहब आप पॉइंट, बोले जी ये जी। जो मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ, 3 सहाफी हैं हमारे जो इस वक्त जो है रफा पॉइंट क्रॉसिंग पॉइंट के नजदीक मौजूद हैं हमारे, यानी कि जिनसे हम ट्विटर के ऊपर भी इन टच हैं। 2 कराची के हैं, इस्लामाबाद का मेहताब जी, सब ये जमाती बैकग्राउंड के ये हैं। हमारा जो है सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, वो कल का इजिप्ट चला गया है, वो पहुंच चुका है और आज सफीर से मुलाकात भी हुई। पता नहीं अब वो क्या रोल अदा कर सकते हैं, ये नहीं पता, लेकिन ये उसका जज्बा है। उसने पार्लियामेंट के अंदर भी जबरदस्त किस्म की दबंग किस्म की तकरीर की है। उसके बाद अमली तौर पे उनकी हेल्प के लिए, अब मुझे नहीं पता वो क्या कर सकेगा, लेकिन वो वहां पे पहुंचा है। और हाँ, अल हिदमत 1 अरब रुपया जो है वो अभी तक कलेक्ट कर चुकी है और लोगों ने खुद दिया है। ये भी है 1 अरब रुपए से ज्यादा अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए, यानी जो फलस्तीनी उम्मत के। सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी आती है ना, इंसान है मुश्किल में है, फिर हमारा दूसरा रिश्ता शुरू हो जाता है कि हम तो हमारे मुसलमान भाई हैं, कि हमारे नबी ने कहा हुआ है कि जो भी कलमा को है वो आपस में कुल्लो मुस्लिम इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और एक और हदीस भी है कि मुसलमान ऐसे है जैसे एक जिस्म, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से पे चोट लगे और जिस्म जिंदा हो तो पूरा जिस्म उसका दर्द महसूस करता है, मुर्दा हो तो फिर कुछ भी नहीं होता। बहरहाल ये रमक है कि अभी तक कुछ ना कुछ जिंदगी के आसार मौजूद हैं कि जो अभी तक कुछ लोग दर्द महसूस कर रहे हैं अपने फलस्तीनी भाइयों का। जी नेक्स्ट जी थैंक यू। जैदी साहब, आपका क्या ओपिनियन है ऑन द साइलेंस ऑफ स्पेशली द अरब कंट्रीज जो कि नेबर्स भी हैं, कम फ्रॉम द सेम फेथ, एंड इट्स समटाइम्स अ बिट स्ट्रेंज, जो कि मेरा ख्याल है खालिद साहब ने भी इस पे हाईलाइट किया कि probably he doesn't agree with their politics and probably they want to remain in power, but overall अगर geopolitics में देखें तो उसमें is there a reason कि वो चुप हैं, या just to maintain their that can also be a reason कि वो जो बाकी मेन कंट्रीज हैं उनको नाराज नहीं करना चाह रहे? क्या रीजन है जी जैद साहब? ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, और खालिद ने भी इस तरफ काफी सारी बातें बताई हैं और काफी हद तक ठीक है। उसमें कुछ एडिशंस कर सकते हैं आप। देखिए बात ये है कि थोड़ा सा फिर आप ये कहेंगे कि चले खैर, लेकिन ये है कि हिस्ट्री की तरफ अगर आप पीछे जाकर देखेंगे ना, कि जो अगर चले सऊदी की मिसाल पहले ले लेते हैं। सबसे पहले जब अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, सऊदी स्टेट किस तरीके से बनी थी, सही है ना, फर्स्ट सऊदी स्टेट, सेकंड, और अब ये थर्ड की तरफ जा रही है। ये क्रॉस रोड्स पर है सऊदी स्टेट। नंबर 1 बात इस वक्त जो काफी चैलेंजेस का उसको अपने अंदर के जो इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें
काफी इनको चैलेंजेस का सामना है। एक तो ये बात है, लेकिन अगर हम पुरानी हिस्ट्री को भी जाकर देखें ना, तो देखिए ये बेसिकली वेस्टर्न सपोर्ट पर कायम हुई थी। जो भी सऊदी स्टेट जो हुई है, जो सेकंड सऊदी स्टेट आई है, ये किंग अब्दुल अजीज के जमाने में। तो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी वेस्ट की तरफ से डिक्टेशन आएगा, वो उसको कबूल करना होगा। वो डिपेंडेंट है इस तरीके से, क्योंकि देखिए मैं यही वाली बात करता हूँ कि जैसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना, जो वेस्ट की सपोर्ट पर इन्हिसार करती है, जो वेस्ट बताता है उन्हें, वो इसी तरीके से कसर करती है। इसी तरीके से साउथ स्टेट का भी मामला ऐसा ही है, जिसका ताना बाना, अब मैं उन डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि किंग अब्दुल अजीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना पाउंड्स वो दिया करती थी। वो फिर बहुत बोरिंग हो जाता है टॉपिक, लेकिन ये बहरहाल अपनी तरफ से बात हकीकत है। हमें ये बातें मिलती है तारीख में कि ये वेस्टर्न सपोर्ट से ही ये हुकूमत आई है। अब जो लोग वेस्टर्न सपोर्ट से आए हों इक़्तिदार में, जो खानदान आए हों, वो कैसे वेस्ट के खिलाफ जा सकते हैं? वो इंपीरियलिज्म के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं होता है ना। जो वेसल स्टेट्स होती हैं, वो अमूमी तौर पर ऐसा ही होता है कि वो ही उस चीज को फॉलो करती हैं जो इनके इंपीरियल मास्टर्स कहते हैं। इसलिए ये मेरे लिए कोई इतना शॉकिंग रिएक्शन नहीं है जो सऊदी कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज ये ऐड हो गई है कि वो पहले जिस तरीके से नुमाइशी इक़दामात किए जाते थे ना, मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद वो भी खत्म हो गया है। अब प्योरली एक सेक्युलर स्टेट की तरफ जा रहा है सऊदी अरब, और ये होना ही था। बेसिकली ये नेचुरल फ्लो है, क्योंकि अब जो किंग अब्दुल अजीज के जितने बेटे थे वो तो चले गए हैं। अब उस पहली दफा ऐसा हो रहा है कि उसका पोता यानी ग्रैंडसन जो है वो इक़्तिदार में आने वाला है, जिससे ये एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी, यानी इंटीरियरली और एक्सटीरियरली भी जो है ना, जितने भी फ्रंट्स है। तो सऊदी अरब, मेरा नहीं ख्याल, और ये मैं पहले भी आपको बात बता चुका हूँ कि वलीद बिन तलाल जो है 2018 में ये बयान दे चुके हैं, प्रिंस जो थे, कि अगर इसराइल और हमास की जंग हुई तो उसमें साथ देगा सऊदी इसराइल का। अब आपको उसकी मैं एक मिसाल बताता हूँ। देखिए हूतीज ने 3-4 दिन पहले बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की है। उनको इंटरसेप्ट जो किया गया था ना, वो सऊदीज ने किया है बुनियादी तौर पर। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है उनकी तरफ से कि वो इस जंग में किसके साथ हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होती चली जाएंगी। वो किस तरीके से आएंगी ये देखेंगे हम। सवाल है, जॉर्डन का भी मिसाल ऐसे ही है। जॉर्डन भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। जॉर्डन में भी जो खानदान है, बरसर इक़्तिदार है, हाशमी हुकूमत जो थी, हाशमियाइट्स जो है, ये सारे के सारे ब्रिटिश से ही वो थे, इनकी सपोर्ट की जाती थी। और फिर बाद में जो लोग, इनमें जो फैक्टर था ना, एक एक इनमें एंटी वेस्ट फैक्टर भी मौजूद था, उसको जो है वेस्ट ने वाइप आउट कर दिया। मतलब जैसे इराक में जो गवर्नमेंट कायम हुई थी, और दीगर जगहों पर जो कायम हुई थी, 2-3 जगहों पर और भी, वो भी लेबनान में भी हुई थोड़े अरसे के लिए। वो भी जो है ना, उसको थोड़ा सा उसमें एंटी वेस्ट एलिमेंट था, खास तौर पर किंग फैसल जो थे इराक के, उनके अंदर ये एंटी वेस्ट एलिमेंट मौजूद था। तो वो उस चीज को निकाला गया और वाइप आउट किया गया, साफ किया गया। अब ये किंग अब्दुल्ला जो मौजूद हैं, जो ये खानदान, ये तो प्योरली वेस्ट पर उसकी सपोर्ट पर इन्हिसार करता है ना। जब तक वो सो है सो है। तो ये वाली बात है। यही बात इजिप्ट की भी है। इजिप्ट में भी मामला कुछ ऐसे ही हैं। जो सदर मुर्सी के साथ हुआ वो हमें नजर आता है। सदर सीसी किस तरीके से आए, वो भी वेस्ट की सपोर्ट से आए। हाँ, एक चीज है जो इजिप्ट में अब नजर आती है, जो कहीं जाकर शायद चेंज हमें सामने आए। जो लीबिया में जो सिचुएशन हुई, उसमें कहीं कहीं हमने ये देखा कि इजिप्ट जो है ना, वो ये जो रशियन अलायंस की तरफ है, उसकी तरफ उसका झुकाव नजर आया है, खास तौर पर वागनर ग्रुप। और ये अब वागनर का भी आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के साथ वो ज्वाइन कर चुका है और कहीं वो एंट्री दे सकता है इस जंग में। ये एक नजर आ रही है बात। लेकिन ये जो बात हम बोलीविया और इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये मैं समझता हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ये लोग ठीक है, इन्होंने स्टांस लिया है, लेकिन आप ये गौर करें कि पैलेस्टीन का मसला पहले भी मौजूद था, लेकिन अब क्यों हुआ है इनकी तरफ से। ये मुझे समझ जरा सी थोड़ी सी नहीं समझ आ रही, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। शायद इस दफा शायद ये भी पॉसिबल हो सकता है कि फलस्तीन का मसला इस दफा बहुत ज्यादा उभर कर सामने आया है, बहुत ज्यादा सीवियर लड़ाई हो रही है वहां पर, शदीद जंग हो रही है, तो शायद इस वजह से हो सकता है। लेकिन इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं।
जो एक्सिस ऑफ पावर की जो मैंने बात की थी कि शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, वो भी इससे के साथ रिलेटेड हो सकता है। लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है। यूएई की मिसाल है, यूएई हो गया, ये कतर हो गया, गल्फ स्टेट्स हो गया, ये वही चीज फॉलो करती हैं जो अमूमी तौर पर सऊदी स्टेट फॉलो करती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई उससे हटकर कोई बात करे। बहरीन का भी आपने देखा होगा जब मामला उठा था, जब बहुत प्रोटेस्ट यार हुए थे और ये तो हमने साउथ अमेरिकन कंट्रीज को भी टच कर लिया, वेस्टर्न को भी कर लिया, ये तो हम्म, सारी एसोसिएटेड थी। ये एक और जी कंट्री है जो पाकिस्तान का नेबर है, इंडिया। ठीक है, अगर हम इनको देखें तो जरा मेरे ख्याल से दिस लुक्स टू बी really something as well in regards to that. यहाँ पे जो सेंटिमेंट आ रहे हैं, अगेन दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन कि The same radical क्या jihadist सिनारियो है। Islamist terrorist. तो इसके बारे में मैं वीडियो को ऑर्गेनाइज करता हूँ, तुम उतनी देर बात करो। व्हाई डू यू गाइस थिंक, यू और एनीवन एल्स, व्हाई डू यू एक्चुअली थिंक कि पहले इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका डिफरेंट स्टांस था, देन मोदी का भी पैलेस्टाइन को ने सेंट्रल स्टांस रखा, फिर उसके बाद व्हाई ऑल ऑफ अ सडन दिस यू टर्न, ये क्या चक्कर? अच्छा, इस पे हिंदुस्तान में जो है ना मेरी काफी बात होती रहती है। मैंने जैसे कि बताया अभी कि रशीद भाई से बात होती है, अब डिस्कशंस करते हैं। पीछे मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ डिफरेंट The same radical jihadist Islamist terrorist thinking that Israel is a victim of, we are a victim of as well. It's just that we have had a very strong government. Israel is fighting this war on behalf of all of us. Israel is fighting this war for you and me. और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। Actually also plays into the sense of Hindu victimhood and villainizing Muslims. So what they're trying to say is that, look, Israel and India, we have a common enemy, and that common enemy are the Muslims. They are the common cultural threat. So by way of extending the solidarity to Israel, it's basically saying that, you know, we are together in fighting this fight against Muslims. भारत छोड़ो, हमास के आतंकवादियों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, हमास का So I'd say that it is less pro-Israeli and more anti-Palestinian. It is more anti-Muslim. India has a disinformation problem. It also has an Islamophobia problem. When you mix the two up, this kind of becomes the perfect opportunity to show off your Islamophobia by way of extending support to Israel. But I think the larger fear is how this could potentially enable more anti-Muslim violence and almost give it a certain legitimacy, right? And another excuse. But there is this sense of affiliation, of closeness with Israel. And I really do worry how it could further anti-Muslim hate crimes in the country. I think what what जी what I see this as is कि इंडिया में तो हमने देख लिया कि sentiment is very pro Israel, but उनकी जो स्टेट, मैं एक बात कहना चाह रहा था। आप जी बात कीजिए, मैं भी करूँ जी। जी मैं थोड़ी सी डाइकोटमी बताना चाह रहा था कि जो उनकी स्टेट का नैरेटिव है वो शायद ये नहीं है। प्रॉब्ली उनके जर्नलिस्ट विच आर प्रॉब्ली वेरी हाइपर नेशनलिस्ट, उनका एक नैरेटिव है और वो इस वीडियो में देखा।
शाह लेकिन मेरा लेकिन आपसे भी जी Furkan, the thing is, Modi reiterated. He basically went back on what Jay Shankar said and what basically was stated. They've been very outrightly clear that they actually support what's going on and they are with Israel every step of the way. ये मोदी की latest statement है. So they're one of the countries who were like neutral, but they've outrightly shifted towards the other side. Oh, okay. Then my question would be because जो Chile, Bolivia और कोलंबिया जैसी कंट्रीज ने स्टांस लिया, they are very strong stances, I guess, and Hmm. they have ended their diplomatic ties with Israel. और जो ये कंट्रीज हैं which are like India, जो कि अपना स्टांस चेंज कर रही हैं towards another end. What's the story behind that? Because ये जैदी साहब ने भी touch किया था कि what's exactly going on? Is it certain lobbies playing in? American lobby I think versus that's something China which अच्छा, interest? which इरफान, इसमें they're मुझे एक looking बात समझ for. आती है, ये जो लैटिन अमेरिका That, वाला मामला है ना शाहजी, अगर लेट मी प्लीज गिव मी Mhm. 2 मिनट प्लीज विद योर काइंड परमिशन। बोलो बोलो। जी, देखिए, लैटिन अमेरिका का जो मैं ये कह रहा था ना, वो मुझे कहीं ना कहीं ये ऐसा महसूस होता है कि वो जो इस पे गुस्सा इसराइल पर तो है, लेकिन इसके पीछे जो आप इसको कहते हैं कि जो पावर है ना, जो आ रही है, वो असल में बुनियादी तौर पर वो एंटी वेस्ट, एंटी इंपीरियलिज्म जो इमोशंस पाए जाते हैं लैटिन अमेरिका में, वो ज्यादा कार फरमा हमें शायद नजर आते हैं। इस वक्त गुस्सा उनको ज्यादा यूएस पर, और ये जो उनकी यहाँ इकोनॉमिक कोलैप्स चल रहा है ना, जो बड़े बड़े ममालिक उनके जो हैं वो खराब हो चुके हैं, ब्राजील की मिसाल ले लीजिए, अर्जेंटीना की मिसाल ले लीजिए, और जितने भी हैं इस वक्त उनकी जो करेंसी क्राइसिस चल रहा है, शायद उसमें कहीं ना कहीं वो जो एंटी, थोड़ा सा ज्यूस, एंटी सेमिटिक तो नहीं कहूंगा, एंटी ज्यूस थोड़ा सा वो चीज नजर आ रही है कि वो जो जायनिस्ट के खिलाफ एक गुस्सा पाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है। तो हमें इन फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखना होगा, देखना होगा कि ये तो क्या जहाँ नजर आ तक इंडिया की रहा है। बात है, और why has हिंदुस्तान, Indian stance changed then? देखिए, हिंदुस्तान की बड़ी मजे की मैं आपको एक बात बताऊं, यही हम्म, बात मैंने जैसे कि कहा कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने 90s में ये कहा था कि खास तौर पर हिंदुस्तान जो होगा ना, वो बड़ी पैंडुलस मूवमेंट में होगा, बहुत ज्यादा जो है उसका जो शिफ्टिंग होगा, और दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द वेस्ट कि हिंदुस्तान किस तरफ जाएगा। डॉक्टर ये साहब जो एक हिंदू पॉइंट आप भूल रहे हैं, मैं आपको याद जी करा दूं कि जी जो लेफ्ट के लोग हमेशा से इसराइल के खिलाफ रहे हैं। ये जो जी कम्युनिस्ट ब्लॉक था ना, ये हमेशा इसराइल के खिलाफ रहा है। ये सोशलिस्ट ब्लॉक, ये वही मेंटालिटी जी, है, ये वही लोग हैं और और वो अपने स्टांस के ऊपर डटे हुए हैं। और हाँ, वो इंडिया तो ने ठीक अपना है। जो है, क्योंकि वो पहले वो रशियन ब्लॉक को हुआ करता था, अब उसने भी जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में शामिल हो गया है, इसलिए उसने अपना स्टांस बदला है। लेकिन जो प्रो रशिया थे, प्रो चाइना थे, जो लेफ्ट का ब्लॉक जो मशहूर उर्फे आम में कराता था, उसका स्टांस हमेशा से एंटी इसराइल रहा है, और उन्होंने आज भी अपने उसी स्टांस का जो है वो इजहार किया है। हाँ जी, जी, पूछिए। लेकिन देखिए, अगर हम ये एक सेकंड कम्युनिस्ट साजिद साहब, जी वन वन सेकंड प्लीज। लेकिन अगर आप खालिद साहब देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑल थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, चाहे वो सोवियत यूनियन थी, चाहे वो सोवियत इन्फ्लुएंस स्टेट्स थी, वो तो इसराइल को उतना ही हाइप अप कर रहे थे। एंड रशिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज जो एलाइड फोर्सेस के साथ मिलके जब इन्होंने जर्मनी को डिफीट किया है, तो they were actually in support of the entire thing. वो तो इसराइल के क्या, एलाइज बने रहे। और ये जायनिस्ट मूवमेंट में सबसे ज्यादा किरदार तो रशियन यूज कर रहा है, इनके जो ज्यादातर स्कॉलर्स आए हैं वो वहीं से आए हैं। ये बात नहीं थी। देखिए, सवाल यह है कि हमेशा से कम्युनिस्ट जो थे ना, वो स्टांस रहा उनका, एक एंटी इसराइल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, इतना सख्ती उसमें नजर नहीं आती थी जो अब नजर आ रही है। ऐसा कभी नहीं नहीं, होगा वो ना, आप एम्बेसडर को बहुत रिकॉल पीछे चले करना। गए।
मैं जो है लास्ट 30-40 ईयर्स की बात कर रहा हूँ कि लास्ट 30-40 ईयर्स में आप ये यही कह लेके सकते आया हैं है। कि वो अगर आप खाली देखें ना सोवियत यूनियन के और फिर रशिया का जितना इन्वेस्टमेंट है और जितना वो एड के अंदर प्रोवाइड करते रहे हैं इसराइल को, दैट इज वेरी कंपैरेबल टू व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स हैव बीन प्रोवाइडिंग देम। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो इस पॉइंट के ऊपर आई थिंक मोर देन दैट दे आर अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स राइट नाउ, एंड देव ऑलवेज बी। वो यूनाइटेड स्टेट्स और एलाइड फोर्सेस वेस्ट के खिलाफ रहे हैं जो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट हैं, बट नॉट अगेंस्ट इजराइल। तो इट्स इसराइल भी ट्रिकी तो उन्हीं का बच्चा है ना, इसीलिए अगर आप देखेंगे ना, आप यूरोप में जो जो बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं जुलूस, उसको भी लीड यहाँ के लेफ्ट के लोग ही कर रहे हैं। यहाँ इटली बिल्कुल। में सोशलिस्ट पार्टी आगे आगे वही हमेशा होते हैं, आज भी वही है, वही लीड कर और रहे हैं। ये भी दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर एस्पेक्ट। ये जो अभी मेरा ख्याल है आप लोगों ने वो वीडियो देख ली है, वो जो अरे मेरी इंडियन ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे बी रॉन्ग। मैं पिछले 25-30 साल में नहीं नहीं, जितने आप भी सही कह रहे इस किस्म के प्रोग्रामों में गया हूँ ना, मुझे ये लेफ्ट के लोग ही मिले हैं, पार्टी देखें, कम्युनिस्ट लेकिन या पार्टी लेकिन सोशलिस्ट वो के बात लोग। आपकी सही है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट कम्युनिस्ट एंड लेफ्ट सोशल लिबरल। जो आपको लेफ्ट ज्यादातर नजर आते हैं मेजोरिटी के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज के अच्छा, अंदर, मैं वो असल नॉट में ना अपने कम्युनिस्ट। पाकिस्तानी वो सेंस में लेफ्ट लेफ्ट कर रहा हूँ मैं इसमें इतनी गहराई नहीं है कि यूरोप के यहाँ पे जो नहीं है ना नहीं, सोशलिस्ट या ये जो आपके जो है साउथ अमेरिकन कंट्री, वो तो हमेशा से मैंने उनका स्टांस देखा है, इसके खिलाफ ही रहा है। बल्कि वो कौन सा है, वो एक अमेरिका के अंदर जाके अमेरिका के खिलाफ वो यूएनओ के इजलास में ह्यूगो शावेज, उसका वो हम्म, याद है कि हाँ अमेरिकन जो है प्रेसिडेंट के बाद वो आया, कहते हैं मेरे से पहले यहाँ एक कुत्ता भौंक के गया है, तो आपको याद होगा। हाँ, वो तो हुगो बड़े सख्त चैवेज वाज अमेरिका अगेन अ और डिफरेंट केटल इसराइल ऑफ के फिश। खिलाफ लेकिन रहे अगर हमेशा आप से। हुगो चैवेज को भी देखें तो हुगो चैवेज एंड वेनेजुएला और फिर एक और फेडरल कंट्री है कास्ट्रो सेरा जो है लियोन, वो भी उनका हमेशा भी खिलाफ रहा है इनके। इजराइल के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात फॉर सम ऑड रीजन। लेकिन हाँ, नहीं, कहीं ना कहीं रहे, इनके रिलेशनशिप को खराब नहीं किया आपने। अब थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। चलिए खैर, ये तो इस पर हम बहस कर सकते हैं और ये बात बहुत हद तक और खालिद तरफ की चले सही जाएंगे है, बस। गलत नहीं कह रहे कि हमेशा से एंटी वेस्ट स्टांस रहा और एंटी इसराइल स्टांस रहा है। ये बात सही है ये लैटिन अमेरिका की, लेकिन सिचुएशन इस दफा एक डिफरेंट नजर आ रही है। ये मेरा मौकिफ है। मैं हिंदुस्तान पर बात करना चाह रहा था थोड़ी, लैटिन अमेरिका पर नहीं। देखिए, हिंदुस्तान का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो पंडित जी को फॉलो करता है या पंडित नेहरू को फॉलो करता है, उनका अपना, गांधी जी को अपना वो मानता है। इन लोगों का स्टांस जो था ना, वो पैलेस्टीन के हक में होता था और ये इसराइल को इतना प्रो इसराइलियंस नहीं होते थे। बजाहिर दिखाने को तो यही था, बहरहाल दिलों का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस वक्त ये एक आरएसएस बेस्ड एक थ्योरी है। देखिए, आरएसएस जो है ना, वो बुनियादी तौर पर हिंदुता जो है वो जायनिस्ट मूवमेंट से ही बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आती है। अगर आप इनके जितने भी हेडगेवार वगैरह इनके लेक्चर्स, वो इनके लिटरेचर को पढ़ें, जो इनके थे, वो अलीकर नाम था इस बंदे का, या क्या था, मैं नाम भूल रहा हूँ। इन लोगों की अगर जितनी भी थ्योरीज को पढ़े ना, तो ये बिल्कुल जायनिस्ट मूवमेंट की तरह नजर आती हैं। इनका सिर्फ एक ही, दोनों मूवमेंट्स का एक ही वो है, एंटी मुस्लिम एजेंडा है। ये आरएसएस का भी यही है, जो शुद्धि की तहरीक हमें नजर आई नए 20s में, 1920s में, और दीगर दूसरी जगहों पर जो चीजें नजर आती हैं। और खासतौर पर मोदी साहब का भी जो इंस्टांस है वो यही नजर आता है कि एक एंटी मुस्लिम एजेंडा हो और ये सारी बातें हों, जो भगवत, ये मोहन भगवत जो है इनके, वो बयानात देते रहते हैं, वो है। तो ये कोई मेरे लिए इतना कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि अगर आरएसएस के लोग इजराइल के हक में बयानात दे रहे हैं, क्योंकि बेसिकली तो शुरू ही ये रेसिज्म की बुनियाद पर हुई है हिंदुता की। और जो जितनी भी इनकी ये रखी गई बुनियाद, वो इसी बुनियाद पर रखी गई है कि एक हिंदू स्टेट होनी चाहिए, जैसे कि जायनिस्ट एक कहते थे कि एक जूइश स्टेट होनी चाहिए, इसी तरीके से है। तो ये एक दो फैक्टर्स हैं हिंदुस्तान में, दोनों अपनी जगह मौजूद हैं। ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। गो के जो एक्सट्रीमिज्म है वो हिंदुस्तान में अब ज्यादा नजर आ रहा है। हिंदू ज्यादा जो झुकाव रखते हैं वो हिंदुता की इन तरफ नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद एक ऐसे हिंदुओं की भी है
जो एक न्यूट्रल स्टांस रखते हैं और चाहते हैं कि वो पैलेस्टीन के साथ भी उनके ताल्लुकात रहें और टू स्टेट जो सॉल्यूशन है वो सामने आए। जी। Yeah, I think there's another reason. I think India has kind of realized and they're using this as a testing ground कि कल को वो कोई similar हरकत करें अपने मुसलमानों के साथ in Kashmir or elsewhere, what would be the reactions? And जी, जी, they're ये kind of बिल्कुल खतरा है, legitimizing. ये बिल्कुल खतरा मौजूद है। ये हमारे सरों पर है और ये समझिए से पाकिस्तान भी मुस्तस्ना नहीं है। क्या आप समझते हैं कि हम्म पाकिस्तान पर उसके असरात नहीं आएँगे? बिल्कुल आएँगे। ये बहुत मुमकिन है। देखिए योगी जी ने तो जो योगी इनका वो है वज़ीर आला है, चीफ मिनिस्टर है, इसने एक सिंधी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि जब हम राम मंदिर रिक्लेम कर सकते हैं, तो हम सिंध भी रिक्लेम कर सकते हैं, जो इस वक़्त सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में मौजूद है। हम्म क्योंकि इनके यहाँ अपनी एक थ्योरी मौजूद है कि ये लोग जो हैं चाहते हैं कि एक वक़्त आएगा कि वो जो है वो अखंड भारत बनेगा और ये जो सिंधु नदी जहाँ बहती है, जिन इलाकों पे बहती है, उन इलाकों को भारत देश में शामिल कर लिया जाएगा। क्योंकि जो द जो इंडस रिवर है, वो इनके लिए एक बहुत मुकद्दस दरिया का एक रखता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है शाहजी, जैसे कि ज्यूज़ के लिए रिवर नाइल और रिवर जो है यूफ्रेटिस है। इसी तरीके से हिंदुओं के लिए भी जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये एक ऐसा परिंदा है जिसका एक पर जो है वो इसराइल में है और दूसरा पर हिंदुस्तान में। ये 2 बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी मानी जाती हैं और फिर ये सारी चीज़ें हैं। जी। हम्म I think Chaji, एक comment like I would like to make बोलिए here बोलिए is कि a few videos back, probably a few sessions back, हमारी एक discussion चल रही थी one state, two state और उस तरह के solutions पे and एक हमारे दोस्त बैठे हुए थे उनसे हम बात कर रहे थे demographic change पे and the link between because we have had discussions उनके साथ पहले कश्मीर के लिहाज से कि how demographic change would probably help them in certain ways और वो relatability है which you pointed out I think and they relate it with Kashmir the situation in Israel and Palestine and that's why the sentiment of जो आपने वीडियो भी दिखाई और डिस्कशन भी चली है populace का उनकी तरफ हो जाता है towards Israel. I don't know whether it can be phrased as a phobia or something, but yes, they basically do relate, and especially also with the Kashmiris, I have seen ke unka sentiment with Hamas, unapologetic support for Hamas, वो भी होता है. It's a sort of a two-way street. जो हिंदुत्व है, they are all for Israel support, and the Kashmiris have a very unapologetic stance over Hamas that I have seen in the conversations I have had. उससे मैं अगर ये conclude करूँ, जी शाह जी. जी मैं ये कह रहा था कि एग्जैक्टली अगर आप वो कश्मीर फाइल्स एक रिसेंटली एक मूवी भी आई थी उसके अराउंड अगर आप डिस्कशंस वगैरह देखें और चीज़ों पे गौर करें तो देर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ मॉडल विच इज़ वेरी सिमिलर टू हाउ इज़राइल इज़ कि वो एक एनक्लेव बनाएंगे जो हिंदू पंडित्स के लिए होगा और उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी एंड द लोकल कश्मीरीज वुड नॉट बी एबल टू एंटर and all that. So that's also an interesting aspect. They're taking that into very serious consideration in today's time. तो एक तो ये वाला एस्पेक्ट है मेरा ख्याल है अगले पार्ट पे मूव करते हैं so all my life I heard mostly in the Western countries that it's all about freedom of speech. अब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस सारी बात के अंदर ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो कंट्रीज इतना अरसा बात करती रही उनके अंदर ब्रिटेन हैज़ बीन वन ऑफ दोज कंट्रीज हेलो व्हिच हैज़ बेसिकली स्टेटेड कि वी टेक प्राइड इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच. अब उनसे वो बंदे तो घर जा नहीं रहे, प्रोटेस्ट करने वाले लोग पास आ नहीं रहे. So they've resorted to banning protests which are pro-Palestine all of a sudden. पहले तो सेल्टिक का मैच था स्कॉटलैंड के अंदर तो दे
outrightly warned the public, the Celtic supporters, that there is not going to be any flag from Palestine over there. लेकिन अगर आप वो pitch को देखें तो those people actually broke that rule और उसका सिचुएशन और सिनारियो ये निकला कि out of that an emergency, due to that an emergency parliamentary vote was taken today, जिसका भी रिजल्ट मेरा ख्याल है आने ही वाला होगा या कल आएगा, कि they're going to ban Palestinian support of any kind and boycotting of Israel of any sorts in public. Now, where does freedom of speech go if that vote comes in? What happened to freedom of speech? अगर अब आप ये डिसाइड करेंगे कि पैलेस्टाइन का फ्लैग नहीं लगेगा, यू कैन नॉट बॉयकॉट ऑर्गेनाइजेशन लाइक मैकडोनल्ड्स. अब मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि जिसने चूहे छोड़े दैट वाज अ क्राइम, मतलब कस्टमर्स का क्या ही कसूर है, इट्स अनहाइजेनिक एंड स्टफ लाइक दैट, और सब लोग तो नहीं बॉयकॉट कर रहे. लेकिन the end of the day to go out there have a vote in itself शायद उसका result opposite निकले, लेकिन we've come to a stage in the UK, a western country, a western democracy who talks about freedom of speech, वो ये कह रहे हैं कि आप certain चीज को boycott भी नहीं कर सकते और उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते. So that shows huge amount of hypocrisy. तो इस पे क्या opinions हैं आप लोगों के? शाजी, लाइक मैं इसमें एक क्वेश्चन ही और होगा कि लाइक दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कमिंग आउट ऑफ, क्योंकि एक तरफ फ्रीडम स्पीच के प्रोटेक्टर्स बनते हैं वेस्ट हमेशा से, नॉट जस्ट द यूके, ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, ऑल द वेस्ट, द नॉर्थ वर्सेस द साउथ, जो एक आपकी डाइकोटमी रही है, वो हमेशा से प्रीचर्स रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के. why they are doing this, that was your question. but मेरा ये कि इतनी लॉबी स्ट्रॉन्ग कैसे है, कि मैं तो लॉबी कहूंगा इसे, कि इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है कि सपोर्ट करने पे यूके में बिल आ रहा है, क्योंकि यूके भी कोई इतने पुराने अलायंस नहीं रहे, हाँ रहे हुए हैं, बट इतने लाइक फोर फ्रंट पे नहीं रहे एज अमेरिकन, इफ यू कंपेयर इट टू द अमेरिकन जो इंटरनेशनल रिलेशन उनके इजराइल से रहे हैं, तो उतने नहीं है वो सपोर्टर्स. तो ये कैसे, आर दे स्ट्रॉन्ग इन लॉबी, और जो इनके बारे में बात वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी. दूसरी बात यह है कि आई थिंक दैट्स अ मिसकंसेप्शन कि इजराइल के साथ यूनाइटेड किंगडम के लिंक्स नहीं रहे. यूनाइटेड किंगडम वाज द कंट्री or the empire which basically conceived this idea, and it came out of there, and then United States kind of inherited the whole situation. लेकिन अभी भी आप देखें तो it's really अभी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कमेमोरेशन हुई है उसके ऊपर भी they've outrightly said there's not going to be a mention of Palestine. पैलेस्टाइन का जो प्रोटेस्ट है वो उस दिन नहीं हो सकता. वैसे हर चीज कर सकते हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन दिस इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड, दिस इज गोइंग टू बी बार्ड, दिस इज गोइंग टू बी बैंड. दूसरी तरफ वो रशिया के अंदर एक जस्ट टू ऐड, दागिस्तान एक मुस्लिम ओरिएंटेड एरिया है, वहाँ पे उन्हें पता लगा इजराइल से एक फ्लाइट आ रही है, दे लाइक रेडेड द एंटायर एयरपोर्ट एंड again they were looking for Jews over there. So it's like very weird how different countries are behaving. उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया रशिया ने, they just let them off. So different countries are behaving in a very different way. It's all geopolitical. थोड़ा सा I think there's a philosophical points, but I think we should watch some videos, Shah. I think we should go towards some videos and then we can come back to philosophical points. Zaldi Saab, if you allow us, agar theek hai? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Thank you very much. Ji Shah ji. Okay. So I think we'll begin by the Dagestan one. देखें किस तरीके से they stormed it. Some breaking news to tell you about. Hundreds of people stormed the main airport in the Dagestan region of Russia.
In video circulating on social media, you can hear people yelling anti-Semitic hate speech. The mob was apparently fueled by rumors of Israeli refugees arriving at the airport from Tel Aviv. Right now, the airport is closed. No reports of any injuries at the moment. The office of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sent a statement to urge Russia to protect Israeli citizens. जी तो जी जज साहब, what do you make of that? जज साहब, if you would like to continue the discussion, आप जो एक पॉइंट रेज करना चाह रहे थे. I think Zadi Sab is not here, so we'll go to Khalid. Khalid bhai. हाँ जी जी. जी मैं बोल सकता हूँ या खालिद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोले आप। नहीं जज साहब आप बोले. जी ये बड़ा अच्छा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। वो खालिद ने भी बहुत अच्छी बातें बताई, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ये मौजूद रहते हैं। हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल बातें ज्यादा करते हैं इस वजह से, लेकिन बहरहाल देखिए ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है ना, ये यहाँ पर भी मैं यही कहूंगा, ये एक जो वेस्टर्न सोसाइटी है ना, इसका एक ये नेचुरल फ्लो है, इस तरफ इसको आना ही था। जैसा कि मैंने पहले ये कहा था कि ये जो पैलेस्टीन में जंग हो रही है, ये शायद ये नेचुरल फ्लो है और इस तरफ इसको आना था। इसी तरीके से वेस्टर्न सोसाइटी में जो आप आज देख रहे हैं ना, कि ये मुख्तलिफ हमें फिनोमेनाज नजर आते हैं कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि यहाँ किसी को पकड़ा जा रहा है उसको। इस जमीन में मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जब ये डोनाल्ड ट्रंप आए हैं यूएस में इक़्तिदार में, देखिए वो जो आसार नमूदार होते हैं ना किसी सोसाइटी में टिरनी के, वो अब वो नजर आ रहे हैं हमें वेस्टर्न सोसाइटी में। अच्छा यहाँ पर जो है ना, सोक्रेटिस का जो फिलोसफी है, जो उसकी 5 रेजीम्स है जो वो कहता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेटो ने उसको डिस्क्राइब किया है रिपब्लिक में, बुक में, लेकिन ये बेसिकली सोक्रेटिस के ही वो हैं, डायलॉग्स हैं जो वो बताता है। उसमें उसने कहा है कि एरिस्टोक्रेसी जो होती है ना, वो टॉप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेसी आती है। अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो थोड़ा सा डेमोक्रेसी पर जब आऊंगा जब बताऊंगा उसको। डेमोक्रेसी आती है, फिर ओलिगार्की आती है, जिस वक्त आप रशिया में देख रहे हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो ओलिगार्की कहलाता है। उसके बाद जो है ना डेमोक्रेसी आती है, और डेमोक्रेसी के बाद टिरनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो ये कहता है कि जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी होती है। वो क्यों? क्योंकि वहां आप ये कहते हैं कि हर बंदा इक्वल है, आप मैं भी इक्वल हूं, ये भी इक्वल है, बच्चा बाप के बराबर है। ये उसका फिलॉसफी है, मेरी नहीं है। बच्चा भी बाप के बराबर है, माँ भी जो है बच्चे के बराबर है, कुत्ता भी जो है घोड़े के बराबर है। वो इस तरीके से ये चीजें आती हैं, और ये हम वेस्टर्न सोसाइटी में एक फेज ऐसा देख चुके हैं जहां ये कही जाती है। अब अमूमी तौर पर क्या होता है, जो कि मैं आजकल अलेक्जेंडर ड्यूगिनी को पढ़ रहा हूँ, अलेक्जेंडर ड्यूगिन है एक रशियन फिलोसोफर है, उसको पढ़ रहा हूँ, जो नॉमिनलिज्म की बात करता है, जो इस वक्त वेस्टर्न सोसाइटी में है। नॉमिनलिज्म क्या है कि हर चीज वो है जिसे जो हम कहते हैं जिसको, ठीक है ना, वही सच्चाई है, और इसके अलावा एब्सोल्यूट ट्रूथ कुछ नहीं, जो हकीकी सच्चाई की जो बात फिलोसफी में की जाती है। अब बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ से ही टिरनी पैदा होती है। देखिए जो एलजीबीटी के हवाले से बात होती है, जो हम और होमोसेक्सुअल्स के हवाले से बात करते हैं, कोई भी बंदा अगर अपनी आवाज उठाने की बात करता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। देखिए ये टिरनी के आगाज है। डोनाल्ड ट्रंप का जो फिनोमेना था वो भी ऐसे ही नमूदार हुआ। ये हर दफा हर सोसाइटी में ऐसे ही नमूदार होता है। तो फ्रीडम और खास तौर पर डेमोक्रेसी के साथ ये बहुत रिलेटेड है, क्योंकि आप देखिए सोक्रेटिस को भी जो जहर का प्याला पीना पड़ा था, वो भी जो ऑर्डर वो किया था, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने किया था। और ये चीजें हम पाकिस्तान में भी देखते चले आ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसी चीजें होती हैं। डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान भी उन्हीं चीजों से गुजर रहा है। अगर आप देखें, जहाँ एक टिरनी आपको एक नजर आ रही है, ये आई भी डेमोक्रेसी से है। जर्मनी में भी यही हुआ था कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म में जो है हिटलर आया था। हिटलर तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, इलेक्शन के जरिए आया था, कोई वैसे तो नहीं आ गया था कोई छापामार कार्रवाई से। तो ये चीजें हमें नजर आती हैं। हम वेस्ट जो है बुनियादी तौर पर
जो टोटलिटेरियन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की तरफ जा रहा है। जी जैन साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रेज किए, पर ज्यादातर मसलों की तरफ आपने इंडिकेट किया, सॉल्यूशंस की तरफ भी मैं आप ही के पास जाऊंगा कि आप मुझे बताएंगे ठीक है डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस की वजह से ये टायरेंट्स पावर में आए, बट यार ऑल क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी की बात तो सारे कर लेंगे, बट once one of my professors said to me, freedom of speech is comes with a consequence, and freedom of speech for a common man only counts till it is not affecting somebody, till you're just shouting Yes, like a dog. So yes. when it begins to make some sense or has impact, that freedom of speech shall not be allowed by the people in authority, whoever it's disturbing, and we will It's mute it. yeah. It's one of the sayings like your freedom of speech ends where my nose begins. कि इधर तक आ सकते हो, जहां मेरी नोज को टच किया वहां तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई। बट जैदी साहब, लाइक आपने कह दिया कि डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स के इश्यूज हैं, ऑल्टरनेट आपने नहीं बताया। मुझे ये रहता है, इट्स अ बिट ऑफ टॉपिक आई नो, बट अगर आप शॉर्ट वे में इसे अगर बता सके कि ऑल्टरनेट क्या है, व्हाट आर यू प्रपोजिंग अगर ये वर्क नहीं कर रहा। जी नहीं, ठीक है, वो जो शादी ने बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन ये जो इक्वालिटी का तस्वुर है ना फुरकान, माशरे में, तो हम देखिए इक्वल नहीं है। बुनियादी तौर पर सारे इंसान इक्वल नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी माशरे में अगर आप इक्वालिटी का जो तस्वुर लाएंगे ना, तो फिर उससे ही टिरनी पैदा होगी। ये एक बहुत एक कॉमन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो बेस्ट सोल्यूशन वो है, वो वही है जो कि सोक्रेटिस ने भी बताया है कि एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कुछ लोग हों जो क्या कहते हैं हुकूमत चलाने का काम करते हों। वो लोग होने चाहिए जो दियानतदार हों, ईमानदार हों, और उनका ताल्लुक पैसे के साथ रिलेटेड ना हो, उनके फाइनेंशियल पर्पसेस ना हो। ठीक है, यहाँ पर ये बात है। फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन लिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए माशरे में। जब उसके जो डायमेंशंस हैं, आप उसकी जो है वो अनलिमिटेड डायमेंशंस करने की जब भी उसको कोशिश करेंगे ना, बात खराबी की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली बात है, बिल्कुल होनी चाहिए, उस पर ज्यादा कदगन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक हद तक भी होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। जैसे स्वीडन में मिसाल दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपने कुरान जला दिया, ठीक है ना, ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई? ऐसा कौन सा है कि आप मुझे हट करके जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच अटेन करना चाहते हैं? ठीक है ना, तो ये चीजें हैं जिसको हमें सोचना होगा, वेस्ट को सॉल्यूशंस की तरफ आए, डायलॉग की तरफ आए। लेकिन फुरकान, मेरा डायब होता है, बहस होती है यहाँ के लोगों से, मुझे ये समझ आता है कि ये शायद सोसाइटी जब जो सिविलाइजेशन जो होती है ना, जो डिजेनरेशन की तरफ जाती है, तो ये एरोगेंस, ये इग्नोरेंस, ये उनके अंदर पैदा होती चली जाती है। ये नेचुरल फिनोमेना होता है, हम हमेशा देखते चले आए हैं। हमने इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी यही देखा, हमने मुस्लिम सिविलाइजेशन में भी यही देखा कि जब चंगेज खान आ रहा था तो एक यकतरफा मोनोपोली हमने कायम करने की कोशिश की, जिससे हमें नुकसान हुआ। इसी तरीके से जो मंगोल्स के खिलाफ हमने किया, इसी तरीके से वेस्ट का भी आप देख रहे हैं, वेस्ट भी उसी फेज से गुजर रहा है जिससे हम गुजरे हैं। तो शायद ये एक नेचुरल वो है, फ्लो है, और मैं समझता हूँ कि ये फ्लो के साथ ही हमें बहना होगा। तो जी आई थिंक सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं, सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, इस पर डायलॉग होना चाहिए, बैठना चाहिए दोनों तरफ के लोगों को कि जी क्या करना चाहिए। एक बंदे की बात जो है ना, उसको आप सोल्यूशन नहीं कह सकते। जी आई थिंक आई वुड जस्ट रेज 2 पॉइंट्स। एक जो आपने इम्पार्शियल एक एंटिटी की बात की, ब्यूरोक्रेसी इज समथिंग व्हिच इज देयर इन डेमोक्रेसी और वो उसका रोल अदा करती है। दूसरी जो आपने बात की ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की, burning scriptures and all, I think Shaji, Medusa and Sid, this is a very interesting topic we should touch sometime, ke, where freedom of speech ends and where hate speech starts, जी and I think we should Well, that do actually another room. depends Yeah, as well. Again, इसके ऊपर different लोगों के different
ओपिनियंस होंगे, सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं और कई तरह की चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को करती हैं। आप देखें अब सोशल मीडिया पे ही लोग कितनी ज़्यादा बात करते हैं कि हेट स्पीच आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देयर आर डबल स्टैंडर्ड्स। अब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर चल रही है। If, for example, somebody would have done a similar thing about Jews, what would be the reaction? So that's where hypocrisy is. आप मुझे खुद बताएं कि एक लोगों को आपकी कंट्री मार रही है और आप उनको मॉक कर रहे हैं, उनके कल्चर को, उनके रिलीजन को, उनको सब ह्यूमन अपने पेट वाली जगह के अंदर से कुत्ता बना के दिखा रहे हैं। ये तो परवर्जन है ना, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं, ये तो हेट स्पीच, ये तो परवर्जन की तरफ चली जाती है बात। जल्दी साहब एक पॉइंट में रेज करूंगा, ठीक है, द पीपल हु मेड इट दे माइट बी इनसेंसिटिव, द प्रॉब्लम इज जो डिसेमिनेट कर रहे हैं इस तरह के कंटेंट को, अगर आप पैलेस्टीनियंस की सपोर्ट पे कुछ कह दें, आई हैव सीन पीपल देयर अकाउंट्स हैव बीन सस्पेंडेड, ठीक है, जस्ट supporting Palestinians, and those platforms are allowing these sort of content to be disseminated and going circles and going viral. That is hypocrisy. वो carriers हैं, they have the power to block something which is inappropriate, but they are not. So owners of the burden मेरा ख्याल है उन पे जाना चाहिए। देखिए फुरकान, यही वाली बात है, जैसे मैं यही कहता हूं कि जब आप इस तरह की भी देखते हैं ना, ग्लोबल, अब आप देख रहे हैं इस तरह का ग्लोबल परवर्जन, जिन जिन सोसाइटीज में, ह्यूमन सोसाइटीज में ये परवर्जन्स डेवलप होते हैं, वो अल्टीमेटली जो सोल्यूशन आता है वो मिलिट्री होता है। अनफॉर्चुनेटली ये हमेशा से देखा गया है। जी, मेरी आवाज आ रही? जी आपकी आवाज आ रही है जैद साहब, बट अगर आप 2 सेकंड वेट करें, वी हैव अनदर स्पीकर ईस्ट एंड आई वुड लाइक टू हैव हिज ओपिनियन। आप ईस्ट अगर कन्वर्सेशन सुन रहे थे, आप अगर कुछ ऐड करना चाहें। ओके, ही लेफ्ट। जैद साहब गो अहेड। जी, मैं यही कह रहा था कि जब भी हमें जिन सोसाइटीज में ये परवर्जन नजर आती है ना इस तरह की, वो उनके ऊपर जो है ना हमेशा फिर मिलिट्री सॉल्यूशन अनफॉर्चुनेटली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये अक्सर ये हुआ है ह्यूमन सोसाइटीज में।
ये हिस्ट्रीज में हमें देखा, बहुत ज्यादा हमने देखा है कि जब आप एक दूसरे बंदे को, जो आपके मुकाबले में थोड़ा बहुत भी खड़ा होता है, बहुत हकीर समझना शुरू हो जाते हैं ना, ये सुपीरियरिटी को जो है, आप वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हो कि मैं जो हूँ, जो है बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ। अमूमी तौर पर उन सोसाइटीज पर ये हमने देखा है कि फिर ये ऐसा ही आता है एक सॉल्यूशन, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। शायद ह्यूमन नेचर आज भी, इतना कुछ हमने पढ़ने के बावजूद, इतनी नॉलेज होने के बावजूद, इतने टूल्स होने के बावजूद, शायद ह्यूमन नेचर हम चेंज नहीं कर पाए, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाए, जो कि एक बहुत अफसोस की बात नजर आती जी, थैंक यू जैन साहब। गौरव, आपने ज्वाइन किया है, आप अगर कन्वर्सेशन सुन रहे थे, गो अहेड, अपने पॉइंट्स रखें। गौरव। हाँ, मैं सुन रहा था regarding, if you could means tell me again, like what exactly means the discussion is about. अभी वी वर डिस्कसिंग गौरव के, वी सॉ अ वीडियो जहां कुछ इन्फ्लुएंसर्स, इजरायली इन्फ्लुएंसर्स वर मॉकिंग, जो कि करंट एक क्राइसिस आया हुआ है पैलेस्टीन में, लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट, जिसमें बहुत से इनोसेंट्स आर डाइंग, ठीक है। तो दे वर मॉकिंग एंड मेकिंग प्रोवोकेटिव वीडियोस। और जो मुझे एक चीज समझ नहीं आती, वो ये है कि देयर हैव बीन इन्फ्लुएंसर्स जो कि पैलेस्टीन के सपोर्ट में आके ओपनली वीडियोस बना रहे थे, एंड दे शेयर्ड सर्टेन थिंग्स के उनके हैंडल्स बैन किए गए हैं बाय दीज सोशल मीडिया साइट्स, ठीक है। बट दीज प्रोवोकेटिव वीडियोस आर डूइंग राउंड्स एंड राउंड्स ऑन दीज साइट्स। और फिर जो इनसेंसिटिविटी हम देख रहे हैं फ्रॉम द अदर साइड, चाहे आप जिस भी साइड को सपोर्ट कर रहे हो, जब आप इनोसेंट की लाइफ को जाते हुए देखते हैं तो यू डोंट मेक सच वीडियोस। उस पे अगर कुछ कमेंट्स हैं तो रखें, देन वी विल हैव more points to discuss. Please go ahead, Gaurav. Yeah, I have also seen those videos. मैंने देखा है, like the Israeli influencers making videos on the means lifestyle, the bad lifestyle in Gaza, and they are making fun of them. तो वो उनको करना नहीं चाहिए. That's actually pretty the worst thing to do right now when there are people's dying. And I have also seen videos of children's in hospitals. Some of means their limbs broken, body parts. मतलब actually means वो देख मतलब देखा नहीं जा रहा था. There are videos which I have in Telegram, and so yeah, definitely my view is that it's war actually, right? And innocent civilians from both from Gaza and Israel have died. And मैं तो टू स्टेट पॉलिसी को हमेशा से सपोर्ट करता हूँ, तो इसमें भी करूँगा. एंड दे both the government in Palestine and Israel should definitely come together as soon as possible, and they should work towards a two-state solution and hope they can coexist peacefully. जितने जल्दी हो सके उतना बेटर है. एंड मैंने ये भी देखा है कि अमेरिका में both sides, the Palestinians and Israelis, hostages के posters फाड़ रहे हैं. And the children also have died, उनके posters निकाल रहे हैं. ये भी नहीं करना चाहिए. People should understand that मतलब कि life मतलब innocent people have died on both the places. They should come together and find a solution rather than hating on each other. That's it. Thank you for Thank coming. you, Gaurav. Thank you, Gaurav. And I'll move towards east. Thank you for joining us. Or if you can hear us, or आप respond करना चाहें, आपने शायद discussion सुनी हो, तो please go ahead. जी जी फुरकान भाई, वो मैं पहले ज्वाइन नहीं हो पाया था, एक्चुअली कॉल आ गया था। तो फुरकान भाई, जो आपने सवाल पूछा, ऑफ कोर्स एनीवन विद हिज राइट माइंड, राइट माइंड, ही वुड ऑल मतलब people who are making fun of the
the Palestinian kids which are dying in the East, your voice is too low, man. Can Okay, you is it good now? raise Is your it good volume? now? Yeah, it's Is it fine good now. now? Yeah. Yeah, yeah, you're fine. So I was saying, Furkan bhai, ki anybody with its right frame of mind, they will condemn. They will at least they will not celebrate the death of the childrens, right? But फुकान भाई इट इज ऑल्सो रियलिटी कि मैंने आपको एक आर्टिकल भी शेयर किया है आई थिंक दीज थिंग्स मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड जो मैंने आपको एक जेनोसाइड वॉच का आर्टिकल शेयर किया है इसमें इट सेज दैट ईरान Palestine and Hamas, they always have the genocidal intent towards the state of Israel. So when they operate with this kind of mindset, how do you think the common people, isn't it obvious कि common people की sympathies it will be not against with यार the मैं इसकी आपको Palestinians? बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि Please go ahead, इंडिया और Shadi. हाँ जी. पाकिस्तान के बीच के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इन वास्ट नंबर ऑफ majority इस तरह की कभी भी कोई कैंपेन नहीं चली. Yes, people sometimes make remarks. There is no love to be lost between Indians and Pakistanis on certain issues. लेकिन इस तरह की तो कोई वीडियो नहीं आम इंडियन या आम पाकिस्तानी बना के इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ा देते. Have you ever seen one? इस तरह के तो शादी कुछ इंसिडेंट्स भी कुछ कुछ हुए नहीं खास. ऐसे कुछ इंसिडेंट हमको देखने को वैसे मिले नहीं. हाँ, अगर हुए भी हों, एज आई सेड कि a person with his right frame of mind, a person who is rational enough, they will not celebrate, they will not even This is mock not these even things. celebrating. That's just mocking, Yeah, outrightly if not, mocking. they will not. Yeah, I corrected अब myself. अब किसी को पानी नहीं मिल रहा, वो नलके के अंदर वो मुंह डाल के दिखा रहा है कि मेरे पास तो पानी बहुत ज्यादा है. I mean, that's just stupid. It makes no sense. It's absurd. It's not even. It's insensitive. ठीक है, आप ये कह सकते हैं. But like somebody, a grown man doing that, whatever age that person might be, Hmm. but is like really weird. शाजी यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि why they have why they have reached this kind of conclusion कि why what things have made them कि वो ये चीजें mock कर रहे हैं इन चीजों को. What has अच्छा, happened? What kind of ईस्ट conclusion they have reached? ईस्ट, Yeah. थैंक यू फॉर शेयरिंग द आर्टिकल. Thank you. बट जीनोसाइड वॉच जो रिकमेंड करती है वो मैंने अभी शेयर किया है. Yes. All लेकिन hostage, फुरकान भाई एक से हाँ नहीं, good जी 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 जी. समराइज के उन्होंने ये 7-8 पॉइंट क्या लिखे हैं. एक तो वो कह रहे हैं कि जो हॉस्टेजेस हैं वो फ्री किए जाएं, एंड आई नो वन डिसएग्रीज विद द पॉइंट के हमास ने जो हॉस्टेजेस रखे हैं वो रिलीज किए जाएं. नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो इसराइल का ब्लॉकेड ऑफ मेडिसिन, फूड, वाटर टू गाजा शुड एंड इमीडिएटली. ठीक है, मिलिट्री एड टू इसराइल शुड बी कंडीशनल on Israel's adherence to the laws of war. Humanitarian corridors to safe areas must be free from bombing and ground attacks. और ये कौन कर रहा है और ये किसके लिए है, ये फोर्थ पॉइंट आपको भी पता है. Hamas and Israel must halt all attacks that kill or injure civilians. Reports of Israel's use of incendiary weapons must be investigated by the UN. And this point is for Israel, not Hamas. Israeli officials in the occupied West Bank must ensure the safety of all civilians. Israel should not invade Gaza unless Israel lifts its blockade. यारा 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 कहने का मकसद है सिर्फ एक पॉइंट है जो फर्स्ट है, हॉस्टेजेस का रिलीज. द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो कि जीनोसाइड वॉच रिकमेंड कर रहा है, दैट इज टू फॉर द एडहेरेंस ऑफ द इजराइल, जो उनकी आईडीएफ है या जो उनकी गवर्नमेंट है उनके लिए है. तो आप इससे बता दें 1 out of 7 पॉइंट्स आपके सारे इजराइल. तो आप आर्टिकल के ऊपर कंक्लूजन क्या निकालना चाह रहे हैं वो मुझे समझा दे पहले जी. East, is East still with us? I think he's got disconnected.
Okay, okay, but like GD He's East is back. that. Yeah, East जी तो 1 out of 7 मैं फिर कंक्लूड कर दूं, शायद आपने सुना ना हो कि वन आउट फुरकान ऑफ भाई सेवन लेट इजराइल मी के लिए है, जो उनकी रिकमेंडेशंस है, इट्स ट्रू नॉट फॉर पैलेस्टीनियंस या बट हमास। हमास के लिए सिर्फ एक रिकमेंडेशन है कि वो हॉस्टेजेस रिलीज कर दें। तो यस पॉइंट क्या है आपका, मुझे समझ नहीं आया। बता रहा हूँ सो फुरकान भाई इफ यू इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग टू द बॉटम अगर आप इस आर्टिकल को ऊपर से स्टार्ट करें तो इट हैज क्लियरली स्टेटेड दैट ईरान Hamas and the Palestine, they have the genocidal intent towards Israelis, towards Jews. It is in the first or second paragraph. If you see this article carefully, and what so ईस्ट they ईस्ट do ईस्ट have this मैं genocidal आपको intent, right? सॉरी मैं कट करूंगा, Go ahead, please. मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो बनते हैं ना, सारा प्रीफेस लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, व्हाट इज हैपनिंग, बट देन दीज ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशली जेनोसाइड वॉच, यूएन एजेंसीज, आईएनजीओज, जो भी डिफरेंट डेवलपमेंट सेक्टर्स में काम कर रही है, हेल्थ वगैरह में, दे गिव सर्टेन रिकमेंडेशंस। पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है? आपको एक कहानी सुनाई जा रही है कि क्या हो रहा है, बट एंड में रिकमेंडेशंस दे रहे हैं कि किस तरह ये रिजॉल्व हो सकता है। उस रेजोल्यूशन में देयर इज ओनली वन पॉइंट फॉर हमास एंड द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर फॉर इजराइल। पैराग्राफ में क्या लिखा है, किसने स्टार्ट किया, क्या किया, क्राइसिस कर्टेल करने की जब बात आती है, देन दीज रिकमेंडेशंस आर ड्राफ्टेड, और उसमें क्लियरली द रिकमेंडेशंस आर इंडिकेटिंग कि जो चीजें इसराइल कर रहा है, दे शुड स्टॉप। आपका So पॉइंट क्या है, मुझे फिर फुरकान समझाएं। फुरकान फुरकान भाई अगेन जो आपने रिकमेंडेशन सिर्फ आप रिकमेंडेशन पे आ गए एंड यू जस्ट मतलब यू जस्ट वांट टू जस्ट जो उन्होंने इस शुरू में जो एड्रेस किया है यू जस्ट डोंट वांट टू लुक एट दिस तो यू हैव टू also accept that Israel sorry Iran Hamas and Palestine they have the genocidal intent you should also accept this right I accept the recommendation So but if you they should have genocidal intent, if they have yes genocidal intent, does that basically mean that those mocking videos are justified? शाहजी, as I said लेट मी Shadi अलाउ as हाँ मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देके समझाऊंगा। yes लाइक मुझे पता है यू वोंट माइंड, अगर माइंड किया तो मैं इन एडवांस सॉरी कह रहा हूँ। माय बोलिए इंटेंट इज टू स्लैप यू, ठीक है, बट शाहजी स्लैप्स यू। तो जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे शाहजी को नहीं करना चाहिए था। मेरी इंटेंट पे बात नहीं होगी। इंटेंट एंड समवन डूइंग समथिंग इज वेरी डिफरेंट, इनमें डिफरेंस है। इंटेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैविंग एन इंटेंशन एंड डूइंग समथिंग एक्चुअली ऑन ग्राउंड, देयर इज अ डिफरेंस मेरे भाई। जी गो हाँ, अहेड। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि यह एक हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं जी। जी जी ईस्ट गो अहेड। हेलो yes प्लीज बोलिए। शाजी ने क्या पॉइंट बोला था शाजी what was your point यार मैंने यही कहा था, how does that justify yeah anything? मतलब why, it does not what are you justify saying? Shadi as I So said so do you anyone think with those this videos? Shadi let me make a point anyone with a right frame of mind they will not even mock these things but as I said but now we are deducing ki what has led to people even started mocking why they are losing the sympathy with those kids and I think Well, the question this over here is let me not the landing it influencer. Shadi landing it I think this देखो, article has just you've given us misread the the example you've misread the question at hand, right? Let me hmm. repeat the question. Yeah. यहाँ पे उन influencers की बात ही नहीं। Try and understand that. Influencers ने जो किया वो माइनॉरिटी में है, उनको कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने ये कर दिया, उनका जो भी रीजन था उन्होंने ये कर दिया, that's fine. But why are these videos allowed on social media? Why aren't they being taken off by Facebook? Why are they not being taken off by TikTok? Why are they not being दूसरी तरफ आपको ये रिटोरिक नजर आ रहा है कि अगर कोई पैलेस्टाइन का फ्लैग भी लेके आता है तो उस पे भी बात हो रही है। दूसरी तरफ आपको ये नज़र आ रहा है कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट टुडे has gone into vote
that it will be illegal in the UK to boycott Israel or by a private group or a private organization. आप किसी को बॉयकॉट नहीं कर सकेंगे इस बेस के ऊपर। और दूसरी तरफ these kind of mocking videos are going viral. Not only that, there's an entire campaign of Israeli army जो कि उनको ह्यूमनाइज करके शो करा रही है, what they're doing, why they're doing it, and all that. So don't you see the point over here? Where are the standards gone? आपने बहुत clearly एक बात की, and I agree with you when you basically state कि ये बड़ा कोई insane वाकया है, ये कोई अक्लमंद बंदा नहीं कर रहा, है ना? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि why aren't the same social media organizations taking any action, जो कि seconds के अंदर videos remove कर देते हैं? Why aren't governments asking them to get rid of these videos? ये क्वेश्चन है। What happened to the standards? बिल्कुल शायद ये एक अच्छा क्वेश्चन है। why are the big corporations, why are they allowing these kind of mocking videos? Is that the general essence of your question? डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं ना, वरना देखो आप लोगों की भी ये मैंने कई दफा कंप्लेंट देखी है इंडियंस की कि कोई छोटी सी बात होती है वीडियो उतार देते हैं। Would you get away with posting a video like that in India? You wouldn't, would you? बिल्कुल 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 शायद ठीक है। जब मैं एक इस पे Double एक standard एडिशन करना exists. चाहूँ। I don't know why the double standard exists. We can go through the root causes ki bhai, who is having that control, but I just wanted to make a point that the point that about the people perception, people now see this, what Hamas did is an act of genocide, and the other part is retaliating. I think it's just the people mindset right now. मैं एक Why, बात but कहना why चाह रहा does था। the double standard exist? That's a different question. Well, at least we can debate all night कि double standard exists क्यों करता है, and we won't come to the end of it. I think the most we can do, I'm glad we've all agreed and we've identified that there is a clear double standard, there is hypocrisy. Otherwise, we would not see a ban on simple flags. We would not see a parliament, one of the oldest democratic parliaments to exist, and they boast about democracy and freedom of speech, would not be calling an emergency meeting के किसी तरीके से वो एक लॉ पास कर दें कि जिसके बाद आप किसी को बॉयकॉट नहीं कर सकते, एक कंट्री को बॉयकॉट नहीं कर सकते, आप डिसेंट नहीं शो करा सकते, आप कॉर्पोरेट कंपनी का बॉयकॉट नहीं कर सकते, वरना तो ये चीजें दिन रात चलती रहती हैं। तो ये कई कई जी तरह की चीजें will be very interesting कि मैं इसका थोड़ी सी एक आउटकम बात क्या कहना होता है। चाह जी रहा था शादी। जैसा एक छोटा सा पॉइंट मैं रेस कर दूं कि ये जो इन्होंने कहा कि हमास का अटैक वाज अ जेनोसाइड, मेरा ख्याल है कि नहीं, इट वाज अ एक्ट ऑफ टेररिज्म। मैं कैटेगोरिकली, मेरे ओपिनियन में वो एक्ट ऑफ टेररिज्म था। जेनोसाइड इज ओवर टाइम, जब आप किसी पॉपुलेशन के ऊपर जुल्म करते हैं, और एक अटैक जेनोसाइड नहीं होता। और उस रीजन में, उस क्राइसिस में जो जेनोसाइड कर रहा है, किसकी पॉपुलेशन कम हुई है, किसका एरिया कम हुआ है, उससे डिटरमिन होगा कि कौन जेनोसाइड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा ईस्ट। और वो आप जैदी साहब के बाद मुझे बता दीजिएगा कि कौन ये कर रहा है। ठीक है, किसकी लैंड कम हुई है, किसके रिसोर्सेस कम हुए हैं, और किसकी पॉपुलेशन कम हुई है। जी जैदी साहब। देखिए, मैं यही बात कह रहा था कि इंटेंट की जो बात कही ना, इंटेंट का जब लफ्ज है, मेरी इंटेंशन है कि ये मैं काम करूंगा। अब मैंने किया है या नहीं किया है, ये एक सवाल है। यहाँ पर उन्होंने इंटेंट की बात की है कि शायद उनके ख्याल में हाइपोथेटिकली वो सोच रहे हैं, एक फर्ज कर ली गई है बात कि शायद उनका इंटेंट ऐसा हो, उनकी इंटेंशन ऐसी हो। ठीक है, एक तो ये बात है। अच्छा देखिए, बात यहाँ पर ये जो मॉकिंग कल्चर की बात है ना, ये तो इस जो आप बात कह रहे थे कि अगर उसको हम उस तनाजुर में देखें, उस बैकग्राउंड में देखें, तो शायद आप उसको
कह रहे थे कि हाँ इसकी जरूरत क्योंकि पेश आई, वो ठीक है आपकी बात। लेकिन अगर हम, ये तो हमास का वाकया तो अभी हुआ है, उससे पहले अगर हम जो देखें वो पैलेस्टीनियंस को मॉक करने का जो कल्चर है वो तो हमेशा से पाया जाता है इसराइल के पास। उनके जो पॉपुलर कल्चर में ऐसी वीडियोस पहले भी आती रही हैं, पहले भी वो जो है ऐसी मूवीज बनाते रहे हॉलीवुड में। तो आप देखिए, जब भी किसी पैलेस्टीनियन बंदे को उन्होंने दिखाना होता था तो उसको टेररिस्ट दिखाते थे। कोई आम नॉर्मल जो है ह्यूमन बिहेवियर तो दिखाया ही नहीं जाता पैलेस्टीनियन की तरफ से। हमेशा यही बताया जाता है कि वो टेररिस्ट है, उनके बच्चे टेररिस्ट है। तो ये मॉकिंग का कल्चर ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है, बस ये है कि ये परवर्जन की हद तक जो है ये चला गया है, यहाँ पर ये बात नजर आ रही है। जी इस बात कीजिए। एंड फुरकान भाई, काइंडली जब आपके पास फ्री टाइम हो, काइंडली गो थ्रू दिस आर्टिकल। सिर्फ इसमें इंटेंट की बात नहीं हो रही है, आप उसको अगर गो थ्रू अच्छे से करें, पहले 3 पैराग्राफ ही पढ़ ले। दे ऑल्सो सेड द अटैक were also crimes sorry, the massacre by Hamas constituted an act of genocide. So they have pointed this out clearly. आप इसको आराम से पढ़ें फ्री होके। तो not only there was an intent, but when they killed the 1500 जो वहां पे 7 अक्टूबर को हुआ, it was according to this article an act of genocide. एंड शाजी का जो क्वेश्चन था, if अगर आप इस चीज पे एग्री करते हैं तो शुड पीपल, जो जो लोग इस फ्लैग को सपोर्ट कर रहे हैं, शुड दे बी अलाउड टू इवन सपोर्ट दिस फ्लैग? बिकॉज इफ अगर हम एक स्टैंडर्ड पे एग्री करते हैं, वाज इट एन एक्ट, अगर ये एक्ट ऑफ जेनोसाइड आप एग्री कर रहे हैं, तो शुड पीपल इवन बी अलाउड टू सपोर्ट द फ्लैग? आई थिंक नॉट, दे शुड नॉट बी अलाउड टू डू दैट। या, so this answers this Shaji's question also. मैं वर्टिकल रीड किया है ईस्ट, और वो उसमें इंटेंट की ही बात कर रहे हैं, आप जाके फिर चेक कर लें। उसमें वो जो हिजबुल्ला और जो बाकियों आप की बात थर्ड करें वो पैराग्राफ पढ़ लें फुरकान भाई सबके लिए। आप जी प्लीज प्लीज आप पढ़ लें, ओके आप पढ़ सर। लें, गो अहेड। सर आप एक बार पढ़ लीजिए ना, जो मैं नहीं नहीं, लिंक भी मेरे को पता लग जाएगा ठीक भेजा कि नहीं मैं भेजा। आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप पढ़े ताकि ओके, आप हमें समझाएं। मैं यहाँ जी से वो थर्ड थर्ड पैरा। पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। Hamas targeted Israel simply because they were Israelis. It was the deadliest massacre of Jews since the Holocaust. Iran, Hamas, Hezbollah, and Palestinian Islamic Jihad, have expressed their genocidal intent to destroy the nation of Israel. The massacre by Hamas constituted an act of genocide. The attack were also crimes against humanity and war crimes. So फुरकान भाई, मैं जो लिंक पढ़ा है मैंने उसी जी से आपको बताया है। जी 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 जी, इसमें इसमें पहले आपने इंटेंट की बात की है और फिर एक एक्शन की, एंड देन द रेस्ट ऑफ देम वर वर्ड्स, दोज वर द ऑथर्स वर्ड्स। ठीक है, द फर्स्ट थिंग जो आपने कही है, हमास ने हाँ, अटैक किया, हम्म, वो फैक्ट है। बिल्कुल। ठीक है, जो हमास ने अटैक किया उसको क्या बोला गया यहाँ पे? नहीं एक सेकेंड, वो ऑथर का ओपिनियन है। ठीक हाँ है, हाँ, जिसका और भी है, उसपे ऑथर वो या हाँ, नहीं नहीं, वो जेनोसाइड जो कंक्लूड कर रहा है वो इंटेंशन की ऊपर कर रहा है। यार यार लेकिन फुरकान आपको भाई, कोई मैं इसीलिए डाउट कह है? रहा हूँ ना, आप ही वो आर्टिकल पढ़ नहीं लीजिए ना नहीं, जनाब। एक सेकेंड, क्या आपको बात कोई डाउट है फुरकान भाई कि अगर कभी हमास कम्स इनटू पावर दे वुड नॉट कैरी समथिंग सिमिलर आउट? दे कोई वुड डाउट है? दे वुड हाँ, दे तो फिर वुड आर्ग्यूमेंट यहीं जेनोसाइड। पे खत्म हो जाती है ना। द या आर्ग्यूमेंट इज ओवर इन दोज रिगार्ड्स। वी नो द इंटेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, बट या डज दैट मीन, जिस तरह हम बार बार एक बात को कह रहे थे, ठीक है, दैट्स द प्राइमरी मिस्टेक विच पीपल आर मेकिंग। जब आप कहते हो इस फ्लैग को ही बैन कर देना है, आई एम सॉरी, पूरा इंडिया कल बजरंग दल कुछ करे तो इंडिया का फ्लैग बैन करोगे ईस्ट? शाहजी ऐसा ही होता है। अगर जो एक सेकंड तो क्या यहाँ कभी पे, एक सेकंड यार यहाँ पे जो अजीब लॉजिक एक है ये। भाई एक सेकंड यार, पूरा बोलने दीजिए। यहाँ पे सिमी ऑर्गेनाइजेशन थी जो केरला में एक्टिव थी, वहां की सब कुछ बैन हुआ है, वहां के लीडर्स ब्लैक हुए हैं, वहां के फ्लैग बैन हुए।
PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वहां के यार, फ्लैग्स you're बैन हुए हैं, पूरी forgetting something. ऑर्गेनाइजेशन बैन That's होती है a शाहजी। flag of a proposed country which apparently exists in terms of half of the world. ठीक है, majority of powers around the globe say they believe in two state solution. आप दूसरी उस कंट्री का जिसकी आप सेकंड स्टेट सोल्यूशन के ऊपर एग्रीमेंट रख के बैठे हुए हो, उसका फ्लैग कैसे बैन करोगे? इट मेक्स नो सेंस, इट्स absurd. शाहजी देन व्हाई हैज ये इट बिल्कुल वही वाली बात है कि आप क्या कर रहे हो कि बजरंग दल कुछ एक्शन करता है तो आप उसके बदले में इंडिया का फ्लैग बैन कर दो. मेक्स नो सेंस. But let's East go ahead. आप अपने पॉइंट रखो. बट इंटेंशन की बात पे जो शाह बात की है, यस आई एग्री, बट इंटेंशन की बेस पे जेनोसाइड जो हो रहा है कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता वन अटैक. Yeah, that's a terrorist organization or so-called terrorist या organization, basically या having some intent of some extremist Muslims who would want to kill all Jews. I'm sure 99.999% of Muslims around the globe do not want to go and kill Jews. They do not hold that intent. So yes, there are groups who do. I won't deny there are Muslims who don't like the Jews, but when you're going to go out and basically state कि किसी कंट्री का फ्लैग इस चीज के लिए बैन कर दो. अलकायदा का वो उसामा बिन लादेन ओरिजिनली सऊदी था, सऊदी का फ्लैग क्यों नहीं बैन कर देते? यार ठीक है. ये जो हम तो क्लिनिकल हाइपोथेसिस वगैरह जब बनाते हैं ना, और ये तो खैर फुरकान तो एपिडेमियोलॉजी के तो वो काम भी करते हैं, तो ये हाइपोथेसिस कायम किए जाते हैं ऐसे कि यार ये ड्रग हो सकता है कि ये फायदा दे रही हो इस डिजीज के लिए, लेकिन तो जरूरी नहीं है कि शाहजी वो होता हो. अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दे लूं फुरकान, कि मैं ये समझता हूं कि फुरकान आज ड्रिंक करेंगे मेरे घर में. ये मेरा एक है कि फुरकान की इंटेंशन है कि वो आज रात मेरे घर में आके जो है ड्रिंक करेंगे. ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया अपने जहन में. ठीक है, और जरूरी नहीं है कि फुरकान आके ड्रिंक भी करें, लेकिन मैंने फुरकान का जो है रास्ता बंद कर दिया अपने घर में. मुझे ये शायद लगता है कि फुरकान रात में आकर मेरे घर में ड्रिंक करेंगे यार, जो कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो भी. तो ये एक अजीब सी थोड़ी सी मुझे लॉजिक समझ नहीं आती कि इस तरह से कैसे बात की जा रही है. ठीक. चले, तो ये मुझे समझ नहीं आया इनविटेशन था या ये आप कह रहे थे कि ना आना. लेकिन This is something which Dr. Zedi uses a lot of time. It is a या reference which he uses. आई नो आई नो. So लेट्स गो बैक टू ईस्ट. ये तो शाहजी आई लाइटर थिंक नोट पर बात की ना मैंने, इसको समझाने के लिए लाइटर नोट में जरा जी थोड़ी सी बात. जी आई थिंक एक अगर हम ही बात करते रहेंगे इको चेम्बर चलेगा. लेट्स गो बैक टू ईस्ट. जी जी बस जी फुरकान भाई चले, लेकिन एटलीस्ट वी शुड एग्री ऑन सर्टेन थिंग. आई थिंक शाहजी हैज एग्रीड ऑन इट. इफ आई एम रॉन्ग, डू टेल मी, डू करेक्ट मी. So, do you agree that the massacre by the Hamas, it constitutes as an act of genocide? but Hamas is not in power, and Hamas is not controlling the region, and Hamas is just capable of terrorist attacks right नहीं, now. Hamas is controlling Otherwise, they Gaza na would have since gone. देखो 2006. ना, अगर अगर वो टेररिस्ट अटैक से ज्यादा केपेबल होते तो वो टेररिस्ट अटैक थोड़ी करते, वो इन्वेड Is करते, Hamas not इनकर्जन controlling करते Gaza since इजराइल की. 2006, Shadi? देखो ईस्ट, Yes. अगर हमास इतने पावरफुल होते तो वो हम्म. टेररिस्ट अटैक ना करते. जो इसराइल जिस तरह इन्वेड कर रहा है, इनकर्जन कर रहा है, वो इसराइल की इनकर्जन करते, वो उसको इन्वेड करते. They would not resort to terror attacks. So they're far off power in that construct. शादी ये जो डिडक्शन है, यार बहुत इसके अलावा how logical is this or not? But I would but इजराइल point क्या चाहते हैं ना, point वो here being पूरा कि इजराइल they are चाहते in हैं ना. power. अगर वो इतने पावरफुल होते तो वो टेरर अटैक क्यों करते, वो जाके कब्जाते. अच्छा शाहजी, I don't know I would like with to what यार intent jump in. they देखो started out this thing. सेट एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा. ईस्ट, आप हाँ जी. इंडिया से आते हो, सेम रेफरेंस साइट समझ सको कि साथ वाला प्लॉट है. एक बंदा कब्जा कर सकता है, एक बंदा जाके उधर शरारत कर सकता है. उसके ना
ट्यूबवेल में ना सट्टा फंसा सकता है। सट्टा कहते हैं आप लाइक कॉर्न को, वो फंसा सकता है, उसका पानी बंद कर देगा, बाकी कर दे, एक कब्जा कर सकता है। दैट्स द पावर डायनामिक्स। एक कब्जा कर सकता है, दूसरे जाके शरारत कर सकता है, जो कि टेररिज्म या टेररिस्ट पैक को आप फ्रेज करोगे। देयर इज अ डिफरेंस, और वो अप्रिशिएट करना आपको पड़ेगा, और वो एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा मेरा ख्याल है, कि टू हैव अ डिस्कशन ओपनली, क्योंकि ये फैक्ट है कि एक ने एक अटैक करके भाग गया। टू बी ऑनेस्ट हम भी कहेंगे भागा, क्योंकि अभी देखिए फुरकान भाई, पैलेस्टीनियंस मर रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, और वो जो आके इसराइल कर रहे हैं, दे हैव द He पावर टू डू understand दैट। what you're saying, and he understands that as well. And the thing is, but the intent is there. There's nothing wrong in admitting that. I personally know a lot of Muslims who do not like Jews, right? That is a general दैट आई sentiment. एग्री, दैट आई So एग्री। the fact is कि अगर फॉर एग्जाम्पल कल को कोई एक्सट्रीमिस्ट बॉडी वहां पे पावरफुल इनफ हो जाती है, तो देर इज नो डिनाइंग दैट दे वुड नॉट शाई अवे फ्रॉम डूइंग समथिंग वेरी सिमिलर. So let's accept reality. इन शाहजी, इट वुड, ये एक अच्छा होता फुरकान भाई, इन शाहजी आप इस चीज पे भी एडमिट कर, भाई आई थिंक ये भाई एडमिट यू करने की बात नहीं तुम्हारे नहीं, साथ मैं दूसरी एडमिट बात कर, करने मैं की बात दूसरी बात नहीं है. कर रहा मैं यहाँ पे हूँ कोई आके कन्फेशंस नहीं कर रहा. नहीं नहीं, एडमिट वाली I'm बात नहीं just है, आई stating थिंक, the fact हाँ। as I'm reading बट it. शाहजी, बट यू So सेड, बट यू सेड कि हमास इज इन पावर एंड दे हैव डन सो, इट्स इन पावर सिंस 2006, और आप इसको एज अ टेररिस्ट यार अटैक कह रहे ईस्ट, हो मैं व्हेन इट बहुत इज एन एक्ट लॉजिकल ऑफ बात फिर जेनोसाइड। से रिपीट करूंगा, एक बहुत छोटी सी है, देन आई वुड लाइक टू मूव ऑन टू द फाइनल कमेंट्स, एंड प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करो. ये इसके ऊपर ओपिनियन नहीं हो सकता. अब organization is only a terrorist organization or an extremist organization or practicing guerrilla warfare in proper terms. ठीक है, जिस पॉइंट तक वो इतनी कमजोर होती है कि वो पूरी अपनी ऑपोजिशन को आर्मी के थ्रू, इन डायरेक्ट इनकर्शन के थ्रू, इन्वेजन के थ्रू टारगेट नहीं कर सकती. If Hamas was so powerful, they would not be resorting to terror attacks. They would be acting like the genocidal state of Israel, practicing apartheid. ठीक है, they would be doing what they are doing right now. ठीक है, तो दैट इज वेयर यू हैव टू ड्रॉ द लाइन इन टर्म्स ऑफ. कल का मुझे नहीं पता, कल मे बी दे बिकम पावरफुल, मे बी दे कम इनटू पावर, मे बी दे बिकम मोर पावरफुल देन Israel. Then what you're saying will probably be a likable thing. It is शाहजी, probably यहाँ मैं एक पॉइंट अच्छा रेज इस करना इस चाहूंगा। शाहजी, जी बट जी शाहजी, जी कैन यू आल्सो टेल कि हु इज कंट्रोलिंग गाजा नाउ? अच्छा मैं एक हाँ, क्वेश्चन ईस्ट बड़ी देर ईस्ट का में। बोलना चाह रहा है. आप लोग प्लीज थोड़ा सा पेशेंस शो करें. जी सब बात कर चुके हैं, सेट भी यहाँ पे आया हुआ है. सेट बोलो. शाहजी, अब मैं सेट इस नहीं सारे बोल रहा. मामले पे क्या ही बोलूं। नहीं नहीं, पहले तो क्या ही मैं बोलना बोल। चाह रहे थे. हेलो, एम आई ऑडिबल? या जी जी. हेलो शाहजी, एम आई ऑडिबल टू यू? जी जी सेठ, थोड़ा लैग है लेकिन आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। मैं इस मामले पे अब क्या ही बोलूं। ईस्ट जो सा इस बात के ऊपर अड़ गया कि भाई हमास ने जेनोसाइड किया, और उसके बाद कि भाई हमास वहां पे गवर्नमेंट है। जेनोसाइड किया अब हमास ने। मामला पता है कि ये ईस्ट भाई कहते हैं ना। अब मामला ये है कि लीगली अगर आप कहें ना, अगर आप लीगली बोले ईस्ट, तो वो कर नहीं सकते अकॉर्डिंग टू द लीगल डेफिनेशंस। उसकी वजह पता है क्या है? वजह उसकी ये है कि यूएन के अंदर जो सारे लॉज वगैरह पास हो के उन्होंने इस बात पे अग्री कर लिया कि पैलेस्टीनियंस को ना, ये आज की बात नहीं है, ये 7 अक्टूबर की बात नहीं है, उससे पहले की बात है। यूएन ने ये डिसाइड कर लिया हुआ है 7 अक्टूबर से पहले का कि Palestinians have all the rights reserved to make an armed resistance against the genocide that is happening to them। वो 7 अक्टूबर से पहले का यूएन मानी हुई है कि इजराइल जो सा है
फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर, गज़ा के लोगों के ऊपर, वेस्ट बैंक के लोगों के ऊपर ऑक्यूपेशन कर रहा है। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वहां पे उनकी अलग गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट उनकी क्या है कि वहां पे कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जो है वो आगे पीछे घूम सकते हैं कि गजा की सर पावर सप्लाई जो सी है वो इसराइल के पास है, वाटर सप्लाई इसराइल के पास है, फूड सप्लाई इसराइल के पास है, इंटरनेट सप्लाई इसराइल के पास है। दे डोंट हैव ऑटोनॉमी। वो सारी चीजें वहां पे यूएन अगर इसराइल के ऊपर यानी कि प्रेशर ना डाले वो भी बंद कर देते हैं, और प्रेशर डालता है वो फिर भी बंद कर देते हैं। अगर आप गजा की घरों की छतों पे देखेंगे ना तो स्टेल मार्क है कि ढेर सारे प्लास्टिक के ना उन्होंने टंकियां लगाई होती हैं। हमारे घर के ऊपर एक है, आपके घर के ऊपर भी एक है ईस्ट। यहाँ पे हम सब जितने लोग हैं ना बड़े बड़े घरों के अंदर रह रहे हैं, इन बड़े बड़े घरों के अंदर एक पानी की टंकी है, ठीक है। गालिबन उसके अंदर 25 से 30 लीटर जो है ना पानी जमा होता है एक टाइम पे। गजा के घरों के ऊपर उस तरह की 7-8 लगी होती हैं, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड टाइम के अंदर पानी आना है, उसके बाद आना है या नहीं आना दे डोंट नो। ये 7 अक्टूबर से पहले की बात है, 7 अक्टूबर के बाद की बात नहीं है। तो यूएन तो कहती है कि अगर आप लीगली बात करें ना, लीगली बात करें तो यूएन तो क्या कहती होती है है कि सिर्फ गजा के लोग लीगली और फलस्तीनियों के डेफिनेशन क्या पास होती है जेनोसाइड की? अ, व्हाट इज द नहीं लीगल डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ जेनोसाइड एज पर यूएन? जेनोसाइड की आप अपनी डेफिनेशन बता दें मैं मान लूंगा। सर आप, मैंने तो बता नहीं दी नहीं, ना, देयर वाज एन आप अपनी इंटेंट डेफिनेशन टू बता दें इट। मैं मान लूंगा। यार इंटेंट के ऊपर देखो, इंटेंट टू आप लोग व्हाट? बार बार उस टू चीज पे आते हो। इंटेंट के ऊपर तुम्हें कोई शक है सर? डू यू थिंक दैट देयर आर नॉट अ proportion of people who would get into power and they would kill Jews? तुम्हें कोई शक है इंटेंट के ऊपर? मुझे तो कोई नहीं मैं है, मुझे इंटेंट अभी मान तक लूं, बात मुझे ये है ना कि किसको दुनिया इंटेंट की के ऊपर नहीं शक नहीं, है? मुझे कोई शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है, हाँ तो नहीं नहीं, बात मुझे खत्म शक हुई। है। मुझे दैट इंटेंट पे पेपर शक इज नहीं है। मसला क्लासिफाइड, ये है ना कि इट होल्ड्स मुझे वाटर। शक है कि अगर देखिए ये जो है ना, ये हाइपोथेटिकल है बात, ये जो कही जा रही है। मुझे शक है आप इंटेंशन पर, किसी की भी इंटेंशन पर आप यार जो है आप शक का मुझे इजहार बताओ कर यार, सकते हैं। यार कैसे यार कर सकते यार डॉक्टर इसमें सैदी, होल्ड ऑन इसमें प्लीज, वन सेकंड। डॉक्टर सैदी, आप मुझे खुद बताओ यार, बी ऑनेस्ट, ठीक है? क्या हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक सर्टन माइनॉरिटी ऐसी नहीं एग्जिस्ट करती who would do that, who hold those हाँ opinions हाँ about? बिल्कुल है, वो होगी, यार वो बस अपनी जगह है। लेकिन लेकिन शाहजी, I would interject on that point. The law इंटेंट पे काम नहीं करता। अब मैं हाँ सोच रहा बिल्कुल। हूं आई वुड मर्डर समवन, उस पे मुझे सजा नहीं मिलेगी, Exactly ना my मुझे यार point. लेबल तो मिलेगा। लॉ की Exactly यहाँ my पे point. बात हाँ कौन तो कर रहा है? यार दैट्स हाउ वहां द पे वर्ल्ड पेपर जो है ना, पेपर वर्क्स। ही प्रेजेंटेड इज नॉट रॉन्ग। आप लोग किस चीज पे आर्ग्यू कर रहे हैं? व्हाट इज रॉन्ग विद देखो दैट पेपर? आप मुझे देखो बताएं, आई एम इंटरेस्टेड टू। शाहजी, मैं जो इंटेंशन की आप बात कर रहे हो ना, मुझे डाउट है इस वजह से क्योंकि हमास एक एक्सट्रीमिस्ट तंजीम नहीं है, नो ऑर्गेनाइजेशन। नो प्लीज ट्राई टू चलो डिफरेंशिएट चलो बिटवीन चलो, हमास। हमास नहीं है, लेकिन हमास का एक क्लॉज ये नहीं है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू टू द ज्यूज इज सेंड देम फ्रॉम द रिवर टू द सी। ठीक है, नहीं मतलब वो उनको वहां से, एक सेकेंड प्लीज, ठीक है, वो वहां से उनको जिस तरीके से भी भेजना तो चाहते हैं ना, तो हाँ हाँ, ये एग्जाइल करना चाहते हैं। नहीं, जैसे एग्जाइल एक सेकंड, नहीं और नहीं यार फिर मैं फिर वो मैं बात एक तो बात नहीं कर कर लूं रहे ना, यहाँ पर, एक एक सेकंड यार, अगर एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, एक्सक्यूज मी, हेलो, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे करेक्ट करना चाहती हूँ। I couldn't speak back when you people were talking about Indian support to Palestine and Israel. So Indian support to Palestine and then Israel had exactly nothing to do with religion. It was more like जब पाकिस्तान नया नया अलग हुआ तो even the Congress was not happy with the results. So the intention of supporting Palestine against the Israeli state was कि हम वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि देखो we can support Muslim and the two nation theory is not legit. ठीक है, लेटर ऑन जब यूएस ने एम्बार्गोज और सैंक्शंस लगाए उस पे इंडिया पे जब इंडिया ने वो किया, क्या कहते हैं उसे,
पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग की, तो उसमें हाँ, वो जब उस पे तो यूएस ने सैंक्शंस लगाए, ठीक है? तो व्हाट हैपेंड देन वाज़ दैट Israel came to India and they said that, you know what, we're your friends, we're going to help you. That's when Indian policy kind of started to change. ठीक है? तो they started to relate more with Israel rather than Palestine. ठीक है? What happened next is Israel have this thing. They also did this to Bangladesh. So when Bangladesh was getting its independence, Israel offered them ke Israel was one of the initial state who offered them कि हम आपको accept करते हैं, ठीक है, and everything. But Bangladesh were like no way, ठीक है, and Bangladesh ने अपने लोगों को भी वहां से visit करने से भी वो कर दिया. But when it comes to the fact that Shaji, you said that a lot of Muslims want to kill Jews. I understand that is because we're from this generation, so that is a very common notion that most Muslims want to just kill Jews. Not most Muslim, but even a little bit. But you need to understand something. This happened. This is a very recent phenomenon. This is a phenomena after Israel. Okay? Before Israel, Jews and Muslims have lived together. Even through the Black Plague, it was when the Christians were, after Jews for so-called doing black magic, and that's why they are not getting the Black Plague, which was actually because Muslims and Jews used to stay more cleaner, rather more hygienic, so they used to not get the Black Plague. So in history, if you go back, whenever they were in, other than the Al-Mohade Caliphate in Cordoba, Jews have generally prospered in most of the Muslims Khilafat and Muslim, you can say, empires. ठीक है? There were of course ruckuses between Jews and Muslims time to time, but generally they have been given their due rights rather than they were rather than they were how they were treated in Christian monarchies. And like in that case, I mean, we all know the history of Jews and Christian religious stuff, due to which there was a very prevalent anti-Semitism till very recent. I think most of the conservative Christian have this thing with them about the Jesus. I'm pretty sure most of you know. So the thing about hating Jews, it's a very recent thing, and it has more to do with Israel rather than Jews. ठीक है? It's because of the making of Israel that started this, 70 years old enmity between Muslims and Jews. But I won't say that most of the Muslim want to kill Jews because oh, they exist, right? Because we have no qualms with Jews, right? The Christians का जो है. So I would say जो मुसलमानों को जो मतलब थोड़ा बहुत यू वुड से कि मेजॉरिटी को देसियों को स्पेशली बड़ा बहुत ब्रेन वॉश किया गया है कि मतलब Jews are, your enemies, natural enemy, Yahudi साजिश. We have heard it many times, but it's not just वो भी यहूदी साजिश, and Jews being the richest people. This is not just a they very desi thing. Even the Christians, I mean, if you read some of their books, they have literally written books about how Judaism is the religion of Satan, and how they're what kind of people they are, right? And how they are controlling, and the concept of Illuminati, and the concept of Rothschild control, having Israel, and all these concepts, they come from the Christian Western community. They do not pick up from the Muslim community or the East or the Desi community or the Arabs. They come all the way from the West. ठीक है? सो ये तो इन सब का माइंडसेट है जो हमारे अंदर भी डाला गया है कि हाँ देखो यहूदी इस तरह है, वरना जनरली इट वाज नॉट लाइक दिस. सो that's all I wanted to say, that the I Jews and agree Muslim with your conflict historic start. perspective, and what you basically said is absolutely right in terms of history. Lekin what we're forgetting, this paper is written in the construct of what is happening now. अगर कोई हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी समझता, एक्सट्रीमिस्ट नहीं भी समझता, उसको इतना एक्सेप्ट ज़रूर करना पड़ेगा कि हमास के अंदर और एक सर्टन Shaji, सेगमेंट I ऑफ am not talking about Hamas. Hamas is नहीं नहीं generally वो a वापस उसको terrorist group. नहीं आई नो दैट Yeah, let me say something, Shaji. मैं काफी मैं सुन बात चुका हूँ. कंप्लीट कर लूँ ना, एक सेकंड. वो जो Yeah. पेपर है
जो जो मेडूसा ने सारा बताया, दैट इज हिस्टोरिकल कॉन्स्ट्रक्ट। जो पेपर यहाँ पे ईस्ट ने प्रेजेंट किया है, बात अगर हम उसके ऊपर आ रही है, तो ये जो इंटेंट के ऊपर यहाँ पे लोग कुछ कुछ लोग हैं जो समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जब एमनिटी होगी दो कम्युनिटीज के अंदर, एक दूसरे को चाहे गरिल्ला वॉरफेयर कह लें या टेररिज्म कह लें, वो कर रही है, और दूसरी जो है वो जेनोसाइड प्रैक्टिस कर रही है। तो आपको ऐसा कैसे लगता है उस चीज को देखने के बाद, अगर कल को वो वाले एलिमेंट्स भी पावर के अंदर आ गए, तो आज अगर इसराइल की स्टेट पावरफुल है, वो भी कुछ रहमदिल होंगे, वो भी उनको उतनी ही नफरत करते हैं। और उनके बिटवीन दुश्मनी का सीड तो सो हो गया है जब से इसराइल बना। शायद उससे पहले दे वुड नॉट हैव वेटेड दैट, गोइंग बाय हिस्ट्री। लेकिन इफ एनीथिंग इज टू गो बाय फॉर द लास्ट 70 years, वहां पे बहुत सारे What लोगों my के जो point is, I mean, Shaji, my point is कि जो ये जो जूइश और मुसलमानों की जो दुश्मनी है, it has been artificially made. You can say it has been artificially made by the West. ठीक है, वरना Jews and Muslims did not have any kind of of course दुश्मनी there was till no rift till before the that time of to that Hitler. They extent. lived together. They lived very happily. They had the same ghettos. They had the same neighborhoods in the West. And Yeah, the Christians used to bother the Jews, not the Muslims. यस yeah. शाजी So मेडूसा और the शादी, seed मैं was ये चाह sowed रहा था, जब ये जो बात एक कही गई सेकंड है ना, ना, एक ये सेकंड लेट मी जो डॉक्टर ऐड बात भाई, कही आपके गई समथिंग है ना, पास शाजी। ही आ रहा हूँ। देखें शाजी, खालिद भाई ज्यूज आपके और पास ही आ रहा इसराइली हूँ। तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इनको मिक्स अप न करें। कोई भी मुसलमान ये मिक्स नहीं अप चाहता नहीं कि कर वो रहे ना, यहूदियों को ये कत्ल करें। एक सेकंड रुक जाए ना, काम डाउन प्लीज। देखें बात क्या है ना, कि जिस टाइम के ऊपर स्टेट ऑफ इजराइल बन गई, उस टाइम पे दुश्मनी बन गई। अब वो हाँ तो बिल्कुल बन सबको गई। पता है, वो ब्रिटिश ने डेवलप की, दूसरे लोगों ने डेवलप की। वो दुश्मनी आज एग्जिस्ट करती है, और ऐसे एक पार्टी और एक सेंटिमेंट पैलेस्टीनियंस में इंटेंट का है, जो आप नहीं डिनाई कर सकते। अगर वो भी कभी है। पावर में आ गए, तो यस। वो भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं शाजी, यहाँ अच्छा पे मैं ये पॉइंट रेज करना डाउटफुल चाहता हूँ। बात है ना। यही तो मैं पॉइंट यहाँ पे रेज कर रहा हूँ कि अगर फलस्तीनी आ भी जाएंगे तो मुसलमान होते हुए वो किसी की नस्ल कुशी नहीं कर सकते। पूरी हिस्ट्री में आज तक मुसलमानों ने जेनोसाइड नहीं किया, यानी कि नस्ल कुशी यार किसी यहाँ की पे नहीं मैं की। डिसएग्री करता हूँ। पिछले 200 years की अगर हम हिस्ट्री उठाएं, तो बहुत सारे मुसलमानों ने और बहुत सारे शाजी सारी मुसलमानों जो का पिछले 200 जेनोसाइड हुआ पिछले है। 250 साल में जो एक 165 एग्जांपल, जंगे हुई हैं, शादी तो को इन्होंने एक आपस में एग्जांपल लड़े हैं। दीजिए, वर्ल्ड ये वार वन भी एग्जांपल आपस में दीजिए। लड़े हैं, वर्ल्ड वार यार टू भी आपस में सबसे लड़े पहले हैं। तो यार जो एटम मैं जो है वो मैं किसने एक गिरवाया पॉइंट है? रखूं यहाँ पे। एटम तो इन्होंने शाजी गिरवाया है। मेरी बात सुने। जी जी खालिद भाई एक सेकंड। शाजी हेयर में आओ, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि पैलेस्टाइन और इसराइल, ठीक है, आपस में जो भी, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अगर दूसरी पार्टी पावर में आई तो क्या होगा। इनफैक्ट आई मीन इफ वी लुक एट हिस्ट्री पैलेस्टाइन और इजराइल की, तो मतलब जूइश रिलीजियस बुक से वो डेविड और गोलायत की कहानी, वहां से उनकी दुश्मनियां चल रही हैं, ठीक है। लेकिन माय पॉइंट इज कि अगर वो कुछ शुरू भी होता है, फॉर एग्जांपल Palestine get so that thing will be more like not a religious conflict. It will be more like Palestinian रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। genociding Israeli, not हाँ, अच्छा Jews. और उसका एक रीजन एक उनका एक कमेंट। लैंड है, रीजन कोई भी हो मैं सकता एक है, बात लेकिन कहना एज चाह रहा था, फार एक अच्छा एज सजेशन देना चाह रहा था। जैदी साहब, ये जैद साहब एक सेकंड, बात के मुताबिक बात एक एक करनी है ना। जैद फुरकान, साहब फुरकान, एक एक कमेंट मेरा खालिद साहब के लिए है, जो क्लेम कर रहे थे कि मुसलमानों ने कहीं कुछ नहीं किया। मेरा ख्याल है लाइक वी ऑल नहीं, कम ये नहीं फ्रॉम मैंने किया, पाकिस्तान। मैं ये लिस्ट नहीं देने किया। लगा था। एक मैंने सद्दाम कहा है हुसैन की नस्ल एक कुशी एक नहीं की, सेकंड ना, नस्ल एक शाजी कुशी। सेकंड शाजी 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 एक सेकंड, बोलिए। एक कमेंट है, सिंपल कमेंट है। लुक इनटू पाकिस्तान। हम सारे पाकिस्तान से आते हैं, शाहजी बहुत डिटेल्ड अभी एनालिसिस देंगे, बट मैं सिंपल बात करूंगा कि जो माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान में हो रहा है दैट इज जेनोसाइड। और जो एक नहीं मेजोरिटी ऑफ नहीं मुस्लिम, नहीं, एक से एक खालिद साहब, एक यार सेकंड, देखो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक ब्लेम सेकंड, कर रहे हैं आप। सुन ले। और जो एक सेक्ट पाकिस्तान में एक और सेक्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत हद तक आप जेनोसाइड पे दैट्स काउंट नॉट कर नहीं सकते हैं। जेनोसाइड नहीं फुरकान नहीं भाई, नहीं यार, दैट इज टेररिज्म नॉट को जेनोसाइड जेनोसाइड। को
I'll give you an example of genocide. ठीक है, that is oppression. You can say कि कुछ जातियां होती हैं कुछ जगहों के ऊपर, we can't completely deny that, but that is वो not है, genocide. लेकिन उसको ये नस्लकुशी नहीं कह सकते। ये हाँ, कौन सी दुनिया में नस्लकुशी रहते हैं नहीं है आप? वो। जी, अच्छा exactly. शादी, मैं जो ये कह रहा था, ये जो मैं नोशन, एग्जांपल देने लगा था ना यार आपको। अच्छा मैं एक सजेशन दे रहा हूँ ना यार, ये नेक्स्ट डिस्कशन में हम ये रख सकते हैं कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, ठीक है? फिर मैं दलाइल के साथ ये हम साबित कर साबित सकता हूँ करेंगे कि कि ये वो टेररिस्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये जो नहीं, आपके हम नोशन, साबित करेंगे कि वो नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है, मैं तो एग्री करता हूँ कि जो इसका एक्ट था, टेररिस्ट एक्ट था, मैं जेनोसाइड के साथ नहीं जाऊंगा जो ईस्ट कह रहा है। आई वुड एग्री टू द पॉइंट कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो बात कर सकते हैं ना, इस पर डिबेट हो सकती है ना फुरकान, आपके ओपिनियन अपनी जगह है, जो ये इल्जाम लाए हम मान जाएं। हम दलाइल अपनी दे सकते हैं ना कि ये क्या है, ठीक है ना? ऐसा क्यों हुआ, किस लिए क्या किया गया, पूरी उसके पीछे एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है ना, उसको हिस्ट्री को देखिए। बिल्कुल फिर बिल्कुल, जो है, we'll आप make a session on in regards to मिल के that. बच्चे को भी अच्छा, आप रखोगे तो मिल का बच्चा अपन साहब, रख हम यहाँ बैठे हुए हैं अपने, यानी कि हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है। ऐसे तो नहीं हाँ, कि बिल्कुल। ये कहें कि बोलेंगे जी हमास ने एटम हम चला दिया है और हम मान जाएंगे कि हाँ जी उसने एटम हम चला दिया। ऐसे थोड़ा ही होता है जी ठीक है। एक सेकंड यार, बात यहाँ पे ये हो रही थी कि इंटेंट के ऊपर कि आप लोग इंटेंट मानते हो या नहीं मानते हो। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि चाहे हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, ठीक है, they do not love Israelis who have Yes, come and we have no reason occupied to their love land. Israel. Can I complete what I'm saying, please? I would be very thankful. I've been waiting very. Just go ahead. Please, शुक्रिया यार। तो अगर वो भी कभी पावर के अंदर आएंगे तो उनकी इंटेंट पे आपको डाउट है? यस, डाउट है कि वो नस्लकुशी नहीं मुझे करेंगे। डाउट नहीं। तो अभी भी वो जो कर रहे हैं वो भी डाउट है, मुझे है, मुझे डाउट है। एक मुसलमान नहीं कर सकता ऐसा, मुझे नहीं करना चाहिए। जी, आपने फिर उसके बाद पूछा था, एक सेकंड ना, आप लोगों ने इस बारे में बहुत दफा बात कर ली है, मुझे थोड़ा सा रैप अप करने दें, मेहरबानी। देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने मेरे से क्या, आपने यहाँ पे क्या किया था कि कोई रेफरेंस दें। तो क्या मैं आपको आयतुल्लाह खमीनी साहब की दूं कि जब उन्होंने जो सुन्नियों के साथ किया, क्या मैं आपको सदाम हुसैन साहब की दूं कि जब उन्होंने शियों के ऊपर और उसके बाद कुर्दिश लोगों को गैस किया, या मैं आपको एग्जांपल दूं कदाफी साहब की जो उन्होंने अपने लोगों के साथ किया। वो सारी भी हकीकतें हैं, उनको हम डिनाई नहीं कर सकते। शाहजी वो गलत किया। हाँ, तो ये भी गलत करेंगे, यही मैं बता रहा हूँ। करेंगे जब करेंगे हाँ, तो तो फिर देखा ये जाएगा। पॉसिबिलिटी तो है ना। देखें, जब अपने लोगों को हमारे बहुत सारे करना नहीं चाहिए, मुझे पूरा सेंटेंस खत्म करने देना। देखें, आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये मैं वल्लाह आलम नहीं बता रहा आपको। आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि दुश्मनी का लेवल इस पॉइंट पे दो ग्रुप्स के, वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, उनकी आपस में एनमिटी कितनी है, दुश्मनी कितनी है। अब अगर आप हमास और इस स्टेट ऑफ इजराइल को देखें, तो वो जो भी आप उनको समझें, कोई इजराइल को जेनोसाइडल समझता है, मैं समझता हूँ हैं, ठीक है, या आप हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझें या गरिल्ला वॉरफेयर वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन या फ्रीडम फाइटर्स भी समझें, ठीक है, उसके बावजूद आपको ये मानना पड़ेगा कि दोनों में से जिसका दाव लगेगा वो एक दूसरे पे लगा देंगे। That is where it's going. They're not really following the religion or their respective religions to the T. It's a power game at this stage. ठीक है, और ये फिर डिस्कशन कर लेंगे ना। ये मेरा ओपिनियन है, आपका डिफरिंग ओपिनियन हो सकता है। मैं तो आपको बताना चाह रहा था कि हाउ आई केम टू दैट कंक्लूजन। आप लोग अपने अपने फाइनल पॉइंट्स दें, फाइनल कमेंट्स दें एंड लेट्स रैप अप फिर एक दो दिन के अंदर। चलिए डॉक्टर साहब आप बोलें, फिर मैं बोलता हूँ। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जो बस फाइनल कमेंट यही है कि जो बार-बार कहा गया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल इस्लाम की जो बात कही गई है, पॉलिटिकल इस्लाम एक अलग डेरिवेटिव है हमारे यहाँ। वो बिल्कुल एक अलग फिनोमेना के साथ सामने आया है। इसका आगाज़ जो है इख्वानुल मुस्लिमीन से होता है, जमात इस्लामी की मूवमेंट है और ये लोग हैं, देखिए ये एक्सट्रीमिस्ट सोच नहीं रखते, ये करेक्शन कर लीजिए, ये किसी तौर पर भी कोई अगर रिएक्शन आ रहा है
तो मत ये समझिए कि ये कोई जो है क्या कहते हैं कोई एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट इनके अंदर पाया जाता है। कुछ फैक्शंस हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब रैशनैलिटी प्रिवेल करेगी तो आप देखेंगे कि वहां पर भी जो है ना एक कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आएगी और जो है कहीं ना कहीं जो है एमनेस्टी दी जाएगी लोगों को। जी बस यही वाली बात। हाँ जी, बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि वो ऐसा नहीं करेंगे। मैं जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि एक मुसलमान को वो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप फतह मक्का करते हैं, आप करते हैं तो आप ना ऐन हालत जंग के दौरान ना बच्चों को, ना बूढ़ों को, ना औरतों को मार सकते हैं, ना दरख्तों और पत्तों को ऐसा कर सकते हैं। मैं इस असूल की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी जो हिस्ट्री बताती है मैनकाइंड की, जो दुनिया में मशहूर नस्ल कुशियां हुई हैं, वो मुसलमानों ने नहीं की। मुसलमानों के अंदर कोई इक्का दुक्का वाकयात हुए, आपस में लड़ाई में हुए, लेकिन मैंने पहले भी बताया था रेड इंडियंस की नस्ल कुशी मुसलमानों ने नहीं की थी। नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर बम मुसलमानों ने नहीं बसाए थे। वर्ल्ड वार 1 और 2 मुसलमानों के दरमियान नहीं हुई थी। इसी तरह अबॉर्जियंस की जो नस्ल कुशी मुसलमानों ने नहीं की थी। ये और यहूदियों को 163 मरतबा जो निकाला गया है, डिस्प्लेस किया गया है, वो 163 100% ईसाइयों ने निकाला है। मुसलमानों ने तो उनको पनाह दी है, अलजायर में पनाह दी, ट्यूनिस में पनाह दी, मराकश में पनाह दी। और ये तो इसराइल जो बनाया गया है जबरदस्ती, उसके बाद जो है ये शुरू हुई है। और फिर उसके बाद जबरदस्ती आज भी देख लें, अमेरिका अपने पूरा बहरी बेड़ा लेके पहुंचा हुआ है, बर्तानिया और जर्मनी और फ्रांस उसको फुल सपोर्ट कर रहे हैं जालिम को। ओ भाई, उनको भी तो देखें। अब मेरे घर के ऊपर आप कब्जा करेंगे और मैं आपको कोई लोरियां तो नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको कोई अमन के भाषण नहीं, मैं रेजिस्ट करूंगा, मैं लड़ूंगा। जी जी लड़ाई के बिल्कुल दौरान लड़ाई बिल्कुल होती है, जंग के दौरान जंग बिल्कुल। होती है। आपने मुझे मारना है, मैंने आपको मारना है, ठीक। हम्म। लेकिन ये ये कहना ये कि आखिरी वो वाला जो सेंटेंस है यही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ, नहीं, रीजन आप ये जो कह भी रहे हैं हो उन्होंने जेनोसाइड, उन्हें नस्ल मारना ही कुशी और मारना है। चीज है शाह जी। लड़ाई के दरमियान एक दूसरे को मारना और चीज है, फतह हासिल करने के बाद अगले की क्लेंजिंग करना वो और चीज। मैं उससे डिनाई कर रहा हूँ यार कि फतह ऐसा फतह करके नहीं ही वो करना क्लेंजिंग चाहिए। करेंगे ना, फतह करते हुए ही वो क्लेंजिंग करेंगे ना, वो प्यार मोहब्बत पता से तो तो नहीं सर, वो फौजियों उसके ने एक बाद। दूसरे को मारना होता है या आपस में फूल पेश करने होते हैं? तो जब यही जंग तो मैं होती है कह तो रहा क्या हूँ, तो होती है? ये वो इंटेंट वाला पेपर सही है ना कि एक दोनों साइडें जिस रीजन से भी, नॉन रिलीजियस रीजन से नहीं ही नहीं सही, नहीं 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 एक नहीं, दूसरे से इसमें ये मोहब्बत देखा नहीं जाएगा कि करती। उसमें जारे कौन है, जारहाना किसका हाँ चले है, तो we वो किसी बात का we भला उसकी किसी सही we है, are लेकिन वो having closing प्यार comments. नहीं करते ना, यही बात है। We are having तो closing comments. मैं आपसे Khalid एग्री sir, करता हूँ, जितनी बातें आपने कही हैं 90% बातों से एग्री करता हूँ। और हाँ जी। मैं आउटकम के लेकिन ऊपर हूँ कि देखें, रीजन जो मैंने भी एक, हो, हाँ जी, रीजन जो भी हो, बोथ साइड्स हेट इच अदर, ठीक है। यस एक ऑफ सही है, कोर्स। मैं भी पैलेस्टाइन लेकिन को जो सही है ना, मानता हूँ। मुसलमानों के पास हेट करने की वजूहात हैं। हम तो किसी के घर में नहीं गए, हमारे घर के ऊपर कब्जा यार किया गया इस है, केस लिहाजा के मेरे अंदर तो मैं एंगर आपसे जो है एग्री वो करता हूँ जेन्युइन कि है। जो पैलेस, देखें उसके ऊपर तो guys, कोई can we दलील नहीं have मिल the रहा ना closing मालकम भाई, closing बात closing statement? Can we have the closing statement? Khalid sir, आप या complete तो करें. ईस्ट पे जी आते जी हैं ना, ईस्ट आ जी जाओ, जी तुम्हारी east. इंग्लैंड से एग्री कर गया, तुम्हारा पेपर सही था। नहीं सही था, एम ही सही सही था, था। नहीं वजह था। वजह से नहीं आप एग्री कर रहे, लेकिन अच्छा, बात तो चले आपकी मान चले प्यार होगा। let's move ईस्ट to नहीं, east. आई East, आई go ahead. मेरे को बस ये कहना है, आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा क्लोजिंग रिमार्क्स ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ जी सेठ साहब। थैंक यू शाह जी। मैं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में कहूँगा कि देखें, यहाँ पे हम ये डिस्कस करते रह गए कि भाई हमास ने जो किया वो जेनोसाइड था या नहीं था। बात ये है, और उसके बाद कि भाई उनको मौका मिलेगा तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन है हमास की लगा दूँ, उसके अंदर तो को एग्जिस्टेंस के क्लॉजेस लिखे हुए हैं। तो अगर ये कहा जाए कि यहूदियों की नस्लकुशी करना उनकी डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ है, तो उसमें तो नहीं लिखा हुआ। करेंगे नहीं करेंगे, इंटेंट के ऊपर आप किसी को जज कर नहीं सकते हैं। दैट्स नॉनसेंसिकल, दैट इज सिनिकल, दैट इज अब्सर्ड। अगर कोई बंदा करे तो फिर उसके ऊपर कोई बात होती है। जो उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन दी है उसके अंदर तो ऐसा नहीं लिखा। इसराइल के अंदर नेतन्याहू ने अमलाक कहा, अलमाक की कौम से तशबीह दी गजा के और फलस्तीन के लोगों को।
अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं जो कि तौरात में लिखी है, ही इज़ बेसिकली सेइंग कि भाई जो सैमुअल की पहली किताब के तीसरी आयत के अंदर लिखा हुआ है, उनके बंदों को मार दो, उनकी औरतों को मार दो, उनके बच्चों को मार दो, उनके चीर खुआरों को मार दो, उनकी बकरियों को मार दो, उनके सवारियों को मार दो, उनके ऊँटों को मार दो, उनकी भेड़ों को मार दो और उनका कुछ भी रहने ना दो। ये नेतन्याहू ने कहा। जो हमास की डॉक्ट्रिन है उसमें कोएग्जिस्टेंस लिखी है। जहाँ तक बात है अपार्थाइड स्टेट होने की, आप 7 अक्टूबर से पहले चले जाएं, इजराइल ने जो कुछ किया हुआ है वो आपके सामने है। अब उसके रिएक्शन में अगर हर कोई बंदा ये कहना शुरू हो जाए फ़लस्तीनियों से, लेकिन तुम हमास को तो कंडेम करो, मैं कर सकता हूँ हमास को कंडेम, शाजी कर सकते हैं, फुरकान कर सकते हैं, हम लोग बैठे हैं पाकिस्तान, यूके, जर्मनी में, ठीक है। जो फ़लस्तीन के अंदर बंदा बैठा है, जिसके ऊपर रोज़ बम गिर रहे हैं, जिसका पानी रोज़ रुका हुआ है, उसको आप कह रहे हो कि भई पहले हमास को कंडेम करो ना, उसके बाद हम बम गिराना बंद करेंगे। ही हैज़ नो कंट्रोल। उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है। हुँ, वो हुँ, 25 साल का नहीं हुआ, वो 30-35 साल की उम्र तक नहीं जाते हैं। हुँ, दैट्स माय क्लोजिंग रिमार्क सर। सही, थैंक यू। फुरकान जी। जी, थैंक यू शाह जी। आई थिंक मैं एक ही कमेंट करूंगा और वो बहुत पर्टिकुलर चीज पे होगा जो कि अभी डिस्कस हो रहा था कि हमास को कैटेगराइज उस आर्टिकल ने जो किया है एज अ जेनोसाइड करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन, उससे आई डिसएग्री क्योंकि उसकी जो सारी प्रेमिस है वो रिलाई करती है ऑन द इंटेंट एंड उस पे वो कह रहे हैं कि इट्स अ जेनोसाइड ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उन्होंने अनआर्म्ड सिविलियंस पे अटैक किया और उस पे हमने एट लेंथ शोज किए हुए हैं। बट उसे कैटेगराइज करना एज अ जेनोसाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट, आई totally disagree and dispose that notion. That's what my opinion is. जो टाइमली अगर आप क्रोनोलॉजिकली देख लें, उन दोनों पार्टीज में कौन सी पार्टी इन पावर रही है जो कि रिसोर्सेज, लैंड और लोगों को कम करती रही है, एक स्पेसिफिक एथनिसिटी, एक स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड, वो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी कि कौन। तो उसमें जेनोसाइड इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और उसमें एक एथनिसिटी के ऊपर स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है। एक स्पेसिफिक इंसिडेंट को आप टेररिस्ट अटैक कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटेंशन की बेस पे नहीं कर सकते और इंटेंशन की बेस पे हमारा लॉ भी नहीं चलता। तो यही मेरी फाइनल स्टेटमेंट है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. देखें, I would just like to say कि अगर आप उस पेपर की बात करते हैं तो I completely agree with that paper. उसकी कॉन्स्ट्रक्ट के ऊपर मैं डिसएग्री कर सकता हूँ। वो खाली मेजर करके आपको एनमिटी बता रहा है। एंड एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज जो भी रीजन हो उसके अंदर ऑब्वियसली पैलेस्टाइन इज ऑन द राइट पाथ। देयर वुड बी नो हमास अगर स्टेट ऑफ इजराइल ना एग्जिस्ट करती, लेकिन देयर इज नो डिनाइंग कि हमास आज एग्जिस्ट करती है और उनके पास इनफ रीज़न और इनफ इंटेंशन है कि अगर कभी वो पावरफुल हो गए तो दे वुड नॉट शाई अवे फ्रॉम सर्टेन एक्शंस आइदर। तो आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन for that a lot, for us to find out, a lot has to happen, and I don't see that happening. It's not a likely thing that it will ever happen that Hamas in the at least coming near future would be in that position कि वो जाके इसराइल को पूरा complete कर दे। दूसरी बात ये कि with that I would also like to add कि freedom of speech is another thing which we need to watch in the western countries right now, क्योंकि उसके अंदर पहले एक एक आपका लिटमस आया था आज से साल पहले, जब ब्लू आइज बच्चे मर रहे थे और पूरी दुनिया से वॉलंटियर्स मंगाए जा रहे थे कि वो फाइटर बने, उनको टेररिस्ट क्यों नहीं ब्रांड कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन इवन पीपल फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज एंड so called terror wings were
basically invited to the Ukraine war. और अब जो आपको final stamp नजर आ रही है, that is basically the difference between how Palestinian flag या पैलेस्टाइन के हवाले से अगर कोई इजरायली ऑर्गेनाइजेशन या किसी कोऑपरेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को बॉयकॉट कर रहा है या उसकी कैंपेन चला रहा है, तो दैट इज नाउ बीइंग टेकन एज समथिंग व्हिच शुड नॉट बी अलाउड। एक तरफ आप वही सोशल मीडिया के ऊपर पैलेस्टाइन के बारे में बात करने वाली सेंटिमेंटल वीडियोस को रिमूव होता हुआ देख रहे हैं, और दूसरी तरफ एक इन्फ्लुएंसर्स की जो कंप्लीट मॉक कर रहे हैं ऑफ दोज किलिंग्स। अगर वो ये भी समझते हैं कि वो बच्चे या वो जो हैं उनकी जान इतनी बुरी वो गलत थे या हम टेररिस्ट को मार रहे हैं, अगर वो ये भी सोच के चलें, तो इट्स स्टिल नॉट जस्टिफाइड। जिसको वो कोलैटरल डैमेज कल तक खाली कह रहे थे विच वाज वेरी इनसेंसिटिव, आज वो उस कोलैटरल डैमेज का मजाक उड़ा। So again, that's all what I wanted to say. These are some things which we can ponder upon in the coming shows. और ये हमास वगैरह का भी ये जिस तरह खालिद भाई और डॉक्टर जैदी ने mention किया है, maybe we should look into a program in regards to that as well. So with that, I'll just pass the mic over to Medusa so she can like end the. Hello everyone, thank you for participation. Also, thank you for listening in. Please subscribe the channel and press the bell button to get notifications whenever there is something new happening. Bye bye. Have a nice day or a nice evening.